agriculture optional is the most underrated optional that students are not even informed about. Those students who are confused between what optional to choose must be running behind the herd options like Shosho, Anthro, Geography, PSIR. Have you even considered agriculture optional once? I would request or insist you guys to check out the syllabus and trends of agriculture optional. You will find out that this optional not only be covered in 3 months, but you will have the hold over this optional which will get you through the merit list, guys. For more details, log on to our website www.sunyaias.in and also subscribe to our YouTube channel for more details about UPSC Civil Service Examination and Forest Service Examination. Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IAS, guys. I hope you all are doing really great. And now we are going to start a whole new course on agriculture optional for 2024. But before starting this optional foundation course, I hope you have seen my video on how to cover or how to approach paper 1. This is very important. आपको ये शुरू करने से पहले ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओवर देयर यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बिकॉज जो नॉन एग्री स्टूडेंट्स है, नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जांपल कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग अदर बैकग्राउंड्स एंड दे आर चूजिंग एग्रीकल्चर एज देयर ऑप्शन, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि शुरू कहाँ से करना है. Will you started by unit number 1, 2, 3? No, I have told you in this particular video that how to approach, and there you will find that we are going to start it with unit number 5, because unit number 5 will give me the knowledge of soil and its nutrient supplying capability and management. Basically, we have put it under the topic soil science and nutrient management. तो soil science and nutrient management क्या syllabus में लिखा है? ये टॉपिक ऐसे लिखा है सिलेबस में? नो. इफ यू हैव सीन द सिलेबस, ये टॉपिक एज इट इज नहीं मेंशन. कैसे मेंशन है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. बट बिफोर स्टार्टिंग, आई होप यू मस्ट ऑल बी नोइंग दैट दिस कोर्स विल बी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. मीन्स आई विल बी यूटिलाइजिंग हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ गाइस. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन हिंदी एंड ऑल कंटेंट विल बी इन इंग्लिश टू. Previous course which we have launched for 2023 was entirely in English, guys, right? But as per the demands of the student, we have created this in Hindi and English. Okay, so let us start and begin with soil science and nutrient management. This topic is not written in the syllabus. When you will see the syllabus as per the notification, you will find the whole paper 1 syllabus and paper 2 syllabus. Under paper 1 you will find this paragraph, guys. And this paragraph we have named it as soil science and nutrient management, because here we are going to study systematically about soil. All these points you are seeing, ये points बहुत ही important है. हमारा गोल क्या होना चाहिए? that इन points से related हमारे पास content होना चाहिए. that at least if question is forming from here, so I should have 250 words and in 7 minutes I'll write these 250 words, guys. So ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ही ज़्यादा explanation और बहुत ही ज़्यादा content चाहिए किसी एक particular topic के लिए, but हर particular जो topic लिखा हुआ है उसके लिए हमारे पास content होना बहुत important. So ये पूरा paragraph we have opened it up in 12 subtopics. So under this unit number 5 you have to understand that आपके पास इन 12 subtopics के लिए content available होना चाहिए. Not only content availability. देखो, there is ample amount of content available in the market online, but what's the problem? As I always say, problem is we do not have on the spot knowledge. We do not retain the content. Content retainment should be the goal, guys, right? As it is we should know. So these 12 subtopics we have to understand, and then we will have the pure grasp of soil and its nutrient supplying capabilities, nutrient management, right? We will be seeing it. So these topics, when syllabus you will read what is the syllabus of unit number 5, subtopics we have divided, you will understand that first 4 units is giving me the understanding of soil, complete understanding of soil. Next is giving me the understanding of nutrients, different type of nutrients. And the another 4 topics are giving me the management of soil and nutrient both. Understanding, people? Understanding, guys? So these 3 things we have to understand. First, 4 topics will give me the understanding of soil. Soil किसे कहते हैं, क्या क्या properties है, बहुत ही important, बहुत ही relaxed way में I'll be teaching you guys. No need to put pressure over here, but आपका दिल साथ में होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है.
then we will understand the nutrient supplying capacity of soil, then we will understand how to manage soil and nutrients. Okay, so in this lecture we are going to start with this particular topic, that is processes and factors of soil formation. Processes and factors of soil formation. पहले हम ये जानेंगे कि सॉइल फॉर्म कैसे हो रही है, हाउ सॉइल इज गेटिंग फॉर्म्ड, तभी तो उसके बाद हमें चीजें समझ में आएंगी, तभी उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी. तो सबसे पहले हम ये कवर करेंगे and then we will move on to this first part. So probably this first subtopic will be covered in the next lecture, and in this lecture we are entirely focusing upon processes and factors. So first of all, before beginning, as per the syllabus you are understanding कि sir मुझे soil forming, S means soil forming processes पता होने चाहिए, plus soil forming factors पता होने चाहिए, that what are the factors that are leading to the soil formation. यही दो चीजें तो हमारा सिलेबस हमसे कहना चाह रहा है. तो क्या आपके पास इससे रिलेटेड कुछ नॉलेज है? I'll give you 5 pause for 5 minutes. Those who are agri students, try to note down what you all know about this. And those who are non-agri, don't wait, don't pause the video, just keep, because आपके पास नॉलेज नहीं होगी processes and factors से रिलेटेड. फिर भी आप दिमाग लगाना चाहते हो तो pause this video for 5 minutes. I'm giving you this as a task. ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके पास अभी इतनी नॉलेज नहीं है, बट यही चीजें तो आपको ग्रैब करनी है इस पर्टिकुलर क्लास से, है ना. इसके पास आपको इससे रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए. बट हाउ वुड आई नो दैट यूपीएससी इज आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस? बाय आवर गाइडिंग लाइट, दैट इज पीवाईक्यूज. हाउ टिल नाउ पीवाईक्यूज आर बीइंग आस्क्ड. तो पीवाईक्यू हम एनालिसिस करेंगे हर एक टॉपिक का, हर एक सब टॉपिक का. ऑल्सो आप एक दो चीजें समझो कि इन सारे 12 टॉपिक्स में से, सब टॉपिक्स में से हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फॉर एग्जांपल सॉइल, फिजिकल, केमिकल, बायो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कोर है. इस कोर टॉपिक का सब टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर और एवरी ईयर यू विल सी क्वेश्चन फ्रॉम हियर. तो दैट मीन्स मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा इस पे. तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रोसेस एंड फैक्टर्स आपको ढंग से नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं, हम फोकस करेंगे, लेकिन आपको रिविजन किसकी ज्यादा करनी होगी? इसकी, लेटर ऑन जब एग्जाम नजदीक आएगा. ऐसे ही यहां पर आप जाओगे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ऐसे ही आप यहां पर जाओगे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे करके देन देयर इज इंपॉर्टेंस टू. वो भी मैं आपको बताता चलूंगा कहां पर आपके इंपॉर्टेंस आपको चाहिए एग्जामिनेशन जब क्लोज आने वाला होता है. अभी तो आपको सारे इंपॉर्टेंट नजरिए से देखना है, बिकॉज यू हैव टू डेवलप कंटेंट, राइट. So let us begin process and factors of soil formation, and इसके PYQs हम देख लेते हैं सबसे पहले. These are the PYQs of SFF, that is factor, soil forming factors, and SFP, soil forming processes. Directly you will analyze that they have asked what are the factors of soil formation. That means अगर आपको इससे related past क्वेश्चन नॉलेज होती तो आप as it is लिख देते. And discuss the role of active factors. Similarly, difference between active and passive factors. Name the important minerals. What do you mean by weathering of rocks and minerals? Understanding. So this type of question you will be able to solve from this particular topic, guys. Also, one tip for you guys. Don't try to solve every PYQ right now, because we have just, हमने भी छांटे हैं PYQs की कौन से टॉपिक पे फिट होते हैं. आप सिर्फ वो वाले PYQ को फॉलो करो अभी जो एज इट इज आपको क्वेश्चन बना के दे रहा है इसी लाइन से. 70% of the questions in your examination are going to come directly from the syllabus line. अगर यहाँ पर processes and factors लिखा है, that means they will be directly asking you what are the different processes of soil formation or what are the different factors of soil formation. ये उनका एजेंडा होगा. ठीक है guys, now without wasting any time, let us start to understand our formation of soil. Soil form कैसे हो रही है? This is my soil, guys. How we are reaching up to this soil? Directly ऐसे ही अवेलेबल है सॉइल हमें, या फिर कुछ प्रोसेसेस होती हैं तब जाके हमें सॉइल मिलती है. So those who are agri students, they must be saying yes sir, we get soil from one intermediary product, that is regolith. और जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स नहीं है वो बोल रहे होंगे कि सॉइल हमें डायरेक्टली मिलती है रॉक से. वो भी गलत नहीं है. सो मैं आपको बता दूं, हमें रॉक्स के बाद एक स्टेज देखने को मिलती है, दैट इज regolith, and then regolith further break down into
soil and this give us soil guys, and हमें यहाँ तक पहुंचना है. बट एक स्टेप और हम जाना चाहेंगे दैट ये हमें रॉक्स कैसे बन रहे हैं. रॉक्स आर फॉर्मिंग out of that magma, right? Lava. So you can say that these rocks are basically getting formed by minerals. Minerals ही तो है which are making us rocks, which are giving us rocks. Understanding? And these minerals, how we are getting these minerals, guys? We are getting these minerals by elements. How we are getting these elements? By atoms. Atoms combine together to form elements. Elements combine together to form minerals. और यहीं पर अगर elements combine हो जाए और these minerals are further will give you either rocks or they will give you some biochemicals. If they are giving you biochemicals, then it will lead to the formation of a cell, and then cell will be giving you tissue, then tissue will be giving you organ system that you will cover in your, that you cover it in your biology section. This elements, atoms you cover in your chemistry section. This particular part of rocks, regolith in soil, we are covering it now over here, soil science. अंडरस्टैंडिंग. एंड यहीं अगर आप स्ट्रेच कर दो ऑर्गन सिस्टम को, आप इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर दो और इन्वायरमेंट के कनेक्ट में ले आओगे तो वो आप कैसे पढ़ते हो, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, ये सब आप एनवायरमेंट में पढ़ोगे. जो एग्रो इकोलॉजी का पार्ट होगा, आई विल बी कनेक्टिंग इट अगेन. व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, आई एम ट्राइंग टू से यू दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरी डैम थिंग इज कनेक्टेड गाइस. ठीक है, यू मी एवरीथिंग, सर्टेन anything which is present over here is connected in one way or the other. So atom se pehle you have seen this Big Bang theory, that how the formation of earth took place or how this universe is existing because of this big bang, right? But we will not go into that deep. We should understand what are these minerals, then how they are getting converted into these rocks, what are different types of rocks, and how these rocks are getting converted into regolith, that is by weathering. So we have to understand about weathering. The first topic will be to understand minerals. Second topic will be to understand these rocks. Third topic will be to understand the weathering, how this weathering is happening, what type of weathering there are. Fourth topic will be to have a good definition of a regolith. And then this regolith is converted into, or has to go through, because regolith is unconsolidated mass. I'll be telling you, rocks are converted into regolith, but we cannot call this regolith as soil, because to call it as soil, isko soil forming processes SFP and soil forming factors से गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये रॉक, तब जाके ये regolith एक soil कहलाई जाएगी. Then only we will be saying it as soil, guys, right? So a lot of things we have to understand. Fifth topic will be this, and then we will be giving some definition and understanding, guys. Again, I am telling you, these, the smallest unit of existence matter is atoms. Atoms combine together to form element. And how many elements are there in the earth crust? How many elements are there? You must have seen that in periodic table 108 elements are there, but extra are keep adding on, right? These are the known elements. Then these elements will give you minerals. These minerals, that we have to have the understanding of minerals, are getting converted into rock. Rocks are getting converted into regolith, and regolith is getting converted into soil. What is written in the syllabus? Only this particular part, soil forming processes and soil forming factors. This all rest is the background, but we have to understand the background. Our connection should be solid, guys. हमारा connection बहुत solid होना चाहिए, right? I hope you are understanding this. Now one by one we will be starting it. Let us see one by one now. First of all, we are studying soil. And the systematic study of soil
we call it as science. And why we are calling it as science? Syllabus में तो soil science लिखा नहीं है, because syllabus is written in that form that we are going to study, and that to a systematic study of soil as a natural resource. Because soil is a natural resource, we are obtaining it from regolith from rocks from minerals that I have shown you, right? So soil is a natural resource, we are going to study that. In this study we basically understand what we are trying to understand, that how soil is getting formed, that is formation of soil, classification of soil, that how we can classify it. Also we are studying the physical, chemical and biological properties of soil. Also we are studying the fertility of soil. Also these things when we are studying, we are trying to understand in connection with the management of these soils, guys. How to manage soil. When we will understand this, then also we will say, then only we can make the soil better for our end use, right? But first of all, you have to understand soil first, then only you will do the good changes in it. That is how you will manage the soil. That is management of soil. Okay, guys. So what this is your definition for soil science. ठीक है, ये आपकी definition बन गई. That soil science is a systematic study of soil as a natural resource in order to understand the formation, classification, physical, chemical, biological and fertility of soil, so that it can be utilized in the management of soil too. This is another branch of it. ठीक है. So this particular, when you are studying this particular part, you call it as pedology, not pedagogy. Pedagogy is the way I am teaching you. Pedology. And another thing over here, you will be known as edaphology. Edaphology is basically that how this soil is interacting with the plants interaction with soil. Okay, this you understand as edaphology and pedology under soil science. See, now you are understanding why I am saying soil science, because in syllabus they want us to understand this only. हमें यही समझना है, physical, chemical और biological properties क्या है, processes, factors क्या है, soils of India कैसे क्या क्या है, classification क्या क्या है. That means soil science ही तो हुआ ही, right? So soil science definition I am telling you. देखो definition, अब कोई भी टेक्स्ट बुक देखोगे आप, हमारी बुक देखोगे, उसमें कैसे soil science की definition दी गई है. Let me show you. See, they have given you the definition of soil science like this. तो आपके पास एक फिक्स्ड डेफिनेशन होनी चाहिए. बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, वी डोंट हैव टू गो इन दैट, बट एक फिक्स्ड डेफिनेशन होनी चाहिए, दैट सॉइल साइंस इज अ स्टडी ऑफ सॉइल ऑफ एज अ नेचुरल रिसोर्स. जो मैंने उस स्लाइड में लिखा है वो सारे कीवर्ड्स हैं गाइस, इंक्लूडिंग सॉइल फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, मैपिंग, physical, chemical, biological, fertility properties, and these properties in relation to the use and management of soil. Sometimes these branches of soil science are pedology, which I have told you, and edaphology, right? These are synonymously said with the soil science only. Soil science को कभी कभार pedology भी बोल देते हैं, edaphology भी, right? But why we are understanding this soil science, guys? We are understanding so that the understanding of soil we can have, और जो ये डिग्रेड होती हुई जा रही है soil, इसको हम कंट्रोल कर पाए. वहीं हमारी यूनिट नंबर 6 आगे आएगी, दैट सॉइल कंजर्वेशन. और आपने अगर अप्रोच वीडियो देखी है तो आपने उसमें अच्छे से समझा होगा, जब कंजर्वेशन तभी कर पाएंगे जब हम सॉइल को समझेंगे, जानेंगे, राइट गाइस? तो ये तो हुआ आपका सॉइल साइंस. ठीक है, ये एक डेफिनेशन आपको हमसे समझ में आनी चाहिए. ये समझो आप कि आपके ग्रेजुएशन टाइम के लेक्चर्स नहीं चल रहे जहां पर मेरे को आराम से आपको सॉइल साइंस में बहुत लंबे चौड़े कंटेंट देना है. नो, बहुत ही फिक्स्ड वे में वी आर अंडरस्टैंडिंग इट, बहुत ही साइंटिफिक वे में, फॉर एग्जाम ओरिएंटेड मैनर, राइट? तो आगे चलते हैं. सॉइल साइंस हमें ये समझ में आ गया. हमें समझना है दैट ओवर हेयर सॉइल तक पहुंचने से पहले, ये जो हमारा एजेंडा है आज का, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस और सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स से पहुंचने से पहले सर थोड़ा सा हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे.
ठीक है, that how these minerals are getting formed or what is these minerals, right? Minerals. So I have told you that minerals are getting formed by elements. Elements like different elements, Na, sodium, different elements are there, right? And the most abundant elements which form the entire earth crust are 8 important elements, guys. And you must all be knowing that out of these 8 important elements, oxygen and silicon are the most important one. Let me show you the table. Okay, these elements, this oxygen alone will not be known as mineral, but if I add SiO2, this will be a mineral, right? Are you understanding? When these elements are combining, they are giving me compounds or minerals, and this minerals I'll be telling you. अभी हम इसकी डेफिनेशन पे काम करते हैं. पहले आप ये देखो कि 108 एलिमेंट जो प्रेजेंट है, 108 एलिमेंट जो प्रेजेंट है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 8 एलिमेंट्स जो एंटायर अर्थ क्रस्ट फॉर्म कर रहा है, राइट? आप ज्योग्राफी में 11th क्लास एनसीईआरटी में पढ़ोगे दैट द होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, राइट? उसमें आप इनर कोर, आउटर कोर, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स पढ़ते हो. वहां की नॉलेज आपको अप्लाई करनी है. डायरेक्ट आप आओ अर्थ क्रस्ट में. अर्थ क्रस्ट is formed by 8 important elements. Out of this 108 known elements, 8 important elements कौन कौन से हैं? See over here, guys. These 8 major important elements. That is oxygen. कैसे divided है? Non-metallic and metallic. Non-metallic में आपके दो हैं, oxygen and silicon. Prelims point of view से कैसे important हो जाएगा? The most abundant metallic element in the earth crust, और वो ऑप्शन देंगे आपको ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन. तो एल्यूमिनियम, आयरन विल बी करेक्ट, नॉट ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, बिकॉज आई हैव आस्क्ड यू द मेटेलिक एलिमेंट्स, राइट? तो ये भी ध्यान में रखना है आपको. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू को कनेक्ट करके भी देखना है सारी चीजें. ये डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला, मेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला. आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड ऑफ एवरीथिंग. तो एलिमेंट्स 108 प्रेजेंट है सर, उसमें से 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो डिवाइडेड है नॉन मेटालिक और मेटालिक में. नॉन मेटालिक में ऑक्सीजन, सिलिकॉन आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, 46-27%. ऑक्सीजन के डिफरेंट कंबाइन होके नॉन मेटालिक एलिमेंट्स क्वार्ट्ज और माइका का फॉर्मेशन देता है. ये आपको देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बट दीज आर द मिनरल्स विच वी आर गेटिंग. दिस इज नॉट मिनरल, दिस इज एलिमेंट राइट नाउ. This is going to get formed into these things, and we will get minerals, and later on minerals will be getting formed into igneous, metamorphic, sedimentary rocks, and after the weathering processes they will be giving us regolith. Regolith will be giving us soil, और soil तक हमें पहुंचना है. ठीक है गाइस? सो आप क्या समझे यहाँ पर? You understand that okay, these elements are basically giving me minerals, and then we have to create a definition of a mineral, guys. Now mineral, is it a naturally occurring substance? You will say yes, that mineral is a naturally occurring substance. Whatever I am writing in the slides, guys, these are keywords. अभी मैं आपको मिनरल की डेफिनेशन दिखाऊंगा, आपको यही सब नजर आना चाहिए. एग्जामिनर जब चेक कर रहा होगा ना, तो यही सब ढूंढ रहा होगा. ठीक है? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस. नाउ मिनरल इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ये जो आप देख रहे हो, सोडियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये सारे क्या ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है? दीज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर. ऑल्सो these are present in some homogeneous form. ठीक है? यहाँ पर आपको SiO2 मिलेगा, Mg something मिलेगा, right? These are in homogeneous form, you will find them. Also over here you will see them in a definite chemical composition. Definite means if there is Fe2O3 is there, you cannot say that Fe2O6, then this will be a whole total different compound and will not be existing in nature too. Definite होना चाहिए. That means definite chemical composition, and also it is having the crystalline nature. This is our definition of minerals, guys.
that minerals are the naturally occurring substances which are inorganic and homogeneous in nature, which are having definite chemical composition and crystalline nature. Let me show you the definition now. See over here, guys. What you are seeing, mineral is a naturally occurring substance which is inorganic with a definite chemical composition and crystalline structure. Okay. Also, this definition, minerals are naturally occurring solids with a definite chemical composition and crystal structure. I have asked you to take out the printout of these PPTs or open these PPTs in your laptops or tabs. There you can find it out too, right? So pause the video, study these lines, right? So this is mineral. ठीक है? So ये तो हो गई हमारी definition. Now, sir, minerals कौन कौन से major minerals अर्थ क्रस्ट पे कौन कौन से होंगे? आपने ये तो बताया 8 elements are very important. Out of those non-metallic elements are in abundance. ये मिलके हमारे minerals बनाते हैं. यहाँ पर हमारे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल रहेंगे. दैट इज यू विल फाइंड इट एज फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड माइका. गाइस, abundance में you will find these 3 minerals. Feldspar percentage in earth crust is 48%. Quartz percentage in earth crust is 36%. And mica concentration in earth crust is 10%. जब अर्थ क्रस्ट पे ये प्रेजेंट है तो यही तो सॉइल में कन्वर्ट होने वाला है. रॉक्स की फॉर्म में भी यही मिलेंगे लेटर ऑन. सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स लग के वो सॉइल हमें देगा. दैट मीन्स यही चीजें हमें सॉइल में भी मिलने वाली हैं. दैट मीन्स आपका दिमाग चल जाना चाहिए दैट सॉइल में हमारा एक मेजर कंपोनेंट मिनरल मैटर रहने वाला है. ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये. ठीक है, मिनरल मैटर रहने वाला है. तो लेटर ऑन आई विल बी कनेक्टिंग इट. समझ रहे हो? सो दिस इज योर फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, माइका आर द मेजर मिनरल्स. ठीक है गाइस, ये सारी चीजें मैं आपको लेटर ऑन कनेक्ट करवाऊंगा. दैट्स फेल्डस्पार 48% होने की वजह से हमें पोटेशियम डालने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती. बिकॉज व्हेन यू विल सी द फेल्डस्पार फॉर्मूला, जो कि मैं लेटर ऑन बताऊंगा, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको गाइस. धीरे धीरे विल बी बिल्डिंग ऑन नॉलेज. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आता है सेकेंडरी. हमारे यहाँ पर हमें समझना है दैट क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स क्लासिफिकेशन. So first classification which we will see it on the basis of origin, guys. On the basis of origin, first classification is there that either you will see primary minerals और दूसरा हमारे पास होगा सेकेंडरी मिनरल. सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से मिनरल्स प्राइमरी हैं, कौन से मिनरल्स सेकेंडरी हैं? आप कैसे डिवाइड कर रहे हो उसको, कैसे क्लासिफाई कर पा रहे हैं, राइट? सो प्राइमरी मिनरल्स आर दोज मिनरल्स हुज फर्स्ट ऑफ ऑल साइज इज लेस देन और नॉट लेस देन बट मोर देन 0.002 mm. कोई भी मिनरल जिसका साइज 0.002 mm से ज्यादा होगा वो प्राइमरी मिनरल्स के तहत आएंगे. कोई भी मिनरल्स जिनका साइज लेस देन 0.002 से कम होगा वो आपके सेकेंडरी मिनरल्स में आएंगे. अब ये तो साइज के बेसिस पे हुआ, बट ऑल्सो मिनरल्स विच आर पार्ट ऑफ द, और यू कैन से मिनरल्स विच आर ओरिजिनल components of rocks are known as primary minerals, because these primary minerals are the original components of rocks. Means for example feldspar, mica. ठीक है, and minerals that are formed from the changes in primary minerals are known as your secondary minerals. Changes from primary minerals are known as secondary minerals. And in these secondary minerals, you will find the example as clay. Whereas in primary minerals, you will find the example sand and silt. These sand and silt will be containing this feldspar, mica and all.
डोंट वरी अबाउट इट, बट सैंड सिल्ट एंड ओवर हियर यू विल फाइंड क्ले। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सैंड सिल्ट क्ले कहाँ पर आ गए, राइट? जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो थोड़ा बहुत समझ रहा होगा, बट अभी आप छोड़ो इसको, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आई विल बी कनेक्टिंग इट, सैंड सिल्ट क्ले को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट राइट नाउ यू जस्ट हैव अ जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, राइट? And those minerals which are the chief constituents of rocks, those minerals which are the chief constituents of rocks, chief constituents of rocks means these are the major important constituent, chief constituent are known as essential minerals. तो ये हमने देखना है later on essential minerals. I'm just telling you the classification, ठीक है? essential plant minerals we have to see as a different subtopic guys, ठीक है? एग्जाम्पल आपको पता चल गया यहाँ पर, फेल्डस्पार, माइका, क्वार्ट्ज are your primary minerals. Clay means silicate clay also include over here, silicate clay minerals are your secondary minerals, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा हम silicate clay minerals के बारे में भी जानते हैं, बिकॉज ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉइल का। तो लेटर ऑन ये आपको इंपॉर्टेंस फील करवाएगा, अभी नहीं, बट एक बार हम यहीं से निकालते हैं इसे सिलिकेट क्ले मिनरल्स को, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी मिनरल्स. Secondary minerals are formed from primary minerals itself. Primary minerals are basically your original components of the rocks. Yes, secondary. And primary and secondary is the classification as per the origin of minerals, how minerals are getting origin, right? So over here we are going to see silicate minerals guys, silicate clay minerals. So these silicate clay minerals are formed from primary minerals due to weathering processes. These are less than 0.002 mm in size. Also, these are the most reactive part of the soil. क्यों होगा, कैसे होगा, वो हम समझते हैं. रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा रिएक्शन इसी पार्ट में आप देखने को मिलेगा आपको. ये आपको लेटर ऑन तक के लिए अंडरस्टैंडिंग बिठाएगा. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. हम लेक्चर 1 से लेक्चर 10 जो देखेंगे सॉइल साइंस का, वो सारा इन कनेक्शन देखेंगे. कुछ सवालों के जवाब आपको लेक्चर 1 में नहीं मिलेंगे, उसका कनेक्शन आप देखोगे लेक्चर 10 तक की. जो सवाल आपके यहाँ पर कुछ होंगे वो लेक्चर 10 में कंप्लीट होंगे. तो हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो और सारे सवालों के आपके जवाब मिलेंगे. मैं तभी आपको छोड़ूंगा, नहीं तो यू हैव माय नंबर, यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर. आपको अपनी क्वारी डायरेक्टली आइदर कॉल मी और व्हाट्सएप मी, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू. ठीक है. तो अभी हमने देखा दैट सिलिकेट क्ले मिनरल्स की आपकी डेफिनेशन बन गई इतने से. व्हाई वी आर स्टडिंग इट, बिकॉज इंपॉर्टेंट लेटर ऑन जब मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ना सॉइल की, दैट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी, ये सब किससे आ रही है, ये प्रॉपर्टीज कैसे आ रही है? ये प्रॉपर्टीज इट इज कमिंग फ्रॉम द these silicate clay minerals only. These silicate clay minerals are responsible for the properties like water holding capacity, nutrient supplying capacity. ठीक है, ये हम later on next class में भी connect करने की कोशिश करेंगे. So now this mean these silicate clay minerals are present in layer formation. ये आपको layer formation में दिखेंगे, layers. And layers किस चीज की सर? सिलिकन एंड एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम लेयर्स यू विल फाइंड. ठीक है, सिलिकन एंड एल्यूमिनियम मैग्नीशियम लेयर्स. ये लेयर्स जो हैं वो आपको किस फॉर्मेशन में मिलेंगी? 3 टाइप्स की फॉर्मेशन में मिलेगा. 1:1 लेयर मिलेगी आपको, 2:1 लेयर मिलेगी आपको, और 2:2 लेयर मिलेगी, नहीं तो 2:1:1 लेयर मिलेगी. ये क्या चीज है ये समझते हैं. As it is, you have to understand this guys, that the silicate clay minerals are very important to understand. These are basically formed from the primary minerals due to the weathering processes. Its size is less than 0.02 mm, and these are the most reactive part of soil. Because, and why we are studying
them because they are important in having the properties like water holding capacity and nutrient supplying capacity, right? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा न्यूट्रिएंट कैसे सप्लाई किया जाएगा, वाटर को होल्ड करने में कैसे अच्छा होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास तक पहुंचेंगे, बट अभी हम मिनरल्स पढ़ रहे हैं. अंडर मिनरल्स सिलिकेट क्ले मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ठीक है. सो ये लेयर्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके बेसिस में यू विल फाइंड सिलिकेट क्ले मिनरल्स अलग अलग होते हैं. अल्टीमेटली हमें समझना क्या है यहाँ से, मैं वो बताऊंगा. ये इतनी सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेयर्स में क्लासिफिकेशन आपने देखा ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल्स SCM. You have seen that okay, I have 1:1 layer. 1:1 layer means क्या है, that there are two layers. Then you will be seeing 2:1 layer. Then you will be seeing 2:2, नहीं तो 2:1:2 layer. Over here total layers you are finding 3. Over here total layer 4. That means in a mineral you will find it in the formation of like this, one and another layer like this. Understanding? This is your one layer. Always remember that the first layer will be always of silicon. So over here silicon element you will find in the first layer, and another layer will be of aluminum or magnesium, and they will be connecting with each other with the oxygen bond, guys. Oxygen bonding, chemical reaction will be happening between them. Likewise again, this is 1:1 layer. Again similar thing will be happening. A lot of layers will be coming and then it will be forming like this. So these two layers we call them as one crystal unit. Crystal unit, because mineral is crystalline in nature, which is forming what type of structure is giving rise to crystal form? This bonding only. समझ रहे हो? तो ऐसे करके ये मैं आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आप मिनरल्स देखोगे. इतना समझना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आप समझो कि 1:1 में आप देखते हो और इसको हम एक क्रिस्टल यूनिट बोलते हैं. इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है एक लेयर से दूसरी ऑक्सीजन बॉन्डिंग होती है. एक क्रिस्टल यूनिट से दूसरी क्रिस्टल यूनिट में जाओगे तो बॉन्डिंग कैसी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है आपकी. ठीक है, ये मैं समझाता हूँ. सेकंड आप यहां पर चेक करो, 2:1 मतलब क्या हुआ? 2:1 मतलब हुआ, ये आप समझ गए, 1 Cu, second Cu. 2:1 means there are total 3 layers. So first create 3 layers, guys. This, I hope I'm creating it nicely, but you understand. ठीक है, these are 3 layers, and I have told you that you have to always start from silicon. So silica, next layer will be of aluminum, and then next layer will be of silicon. So this whole over here 3 layers, total 3 layers is there, is giving you one crystal unit now. So that means obviously based on the layers, this particular silicate clay minerals are different, and similarly it will goes like this, 3 bonding you will see, 3 layers bond. ठीक है. Over here but you will find 4 layers in the third category. That means you should have 4 layers. This is your 4 layers, guys. And 4 layers again, how? Over here you will find silica, aluminum, silica, aluminum. So 2 silicas layer, 2 aluminum layer, 2:2. Sometime you will find magnesium can also come into picture. Then this layer system will be changing to 1:1, 2:1:1. 2:1 means 2 silica and 1 is aluminum layer. And this is one crystal unit. Now based upon these structures, there are, now this you have to remember. देखो ये सारा हम क्यों समझ रहे हैं, ताकि कुछ नेम आपको ध्यान में हो. That based on these silicates clay minerals, there are certain which I am telling you, that 1:1 layer, 2:1 layer, 2:2 layer. तो हम ये पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने किन्हीं सॉइल्स में देखा होगा प्रॉपर्टीज. आपने देखा होगा सर that soils absorbs water too, और सॉइल में एक प्रॉपर्टी होती है that soils are
आइदर स्वेलिंग और श्रिंकिंग। ये कैसे हो पा रहा है? ये बिकॉज ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल्स ही हो पा रहा है। सिलिकेट क्ले मिनरल्स को समझना पड़ेगा। आप देखो, वन वन लेयर जब आपके पास है, 1:1 लेयर, you understand that their bonding between one crystal unit and second crystal unit is, this is hydrogen bonding, whereas 2:1 3 layers, when you are combining, this is oxygen bonding. Out of these two, tell me, hydrogen bond is strong or oxygen bond is strong? Hydrogen bond is strong. अगर जिसको केमिस्ट्री नहीं आती कोई बात नहीं, एज इट इज, ये दिमाग में रख ले। इसके पीछे जाना इज नॉट इंपॉर्टेंट। सर क्यों हाइड्रोजन ही क्यों स्ट्रांग होती है? फिर आपको केमिस्ट्री का एक एस्पेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो आपको नहीं घुसना, क्योंकि नोबडी इन एग्रीकल्चर ऑप्शनल इज गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो हम अननेसेसरली अपनी, देखो नॉलेज तो बढ़ा लोगे आप ये समझ के, बट अननेसेसरली आप अपना टाइम और कंटेंट वेस्ट करोगे, बिकॉज आप अननेसेसरली चीजों को पढ़ रहे हो। ठीक है, understand hydrogen bond is stronger than oxygen bond. So when water will try to water will be trying to enter into this particular crystal unit, क्या water enter कर पाएगा? No. तो इसीलिए ये सिलिकेट मिनरल्स जहां पर आपको दिखेंगे वहां पर नो श्रिंकिंग और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिलेंगी। सॉइल में श्रिंकिंग और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे, वेयर एज इन दिस 2:1 में आपको ये श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज मिलेगा। इधर क्या होता है 2:2? ये एक इंटरमीडिएटरी स्टेज है। इंटरमीडिएटरी स्टेज मींस दैट 1:1 एंड 2:1 की प्रॉपर्टीज ये 2:2 में दिखती है आपको। ठीक है, तो यहां पर बोथ, कभी कभार आपको श्रिंकेज एंड स्वेलिंग भी मिलेगी, कभी कभार आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? ओनली दीज टू। नाउ यू हैव टू नो अबाउट द एग्जांपल्स, दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स। सिलिकेट क्ले मिनरल्स के हमें एग्जांपल्स तो बता दीजिए, राइट? वो हमें पता होना चाहिए। सो राइट डाउन द एग्जांपल गाइस। ओवर हियर यू विल फाइंड, ये मैं हटा दूं ताकि आपको विजिबल रहे ज्यादा अच्छे से। केओलिनाइट का एग्जांपल, सॉरी 1:1 का एग्जांपल आपके पास आएगा केओलिनाइट मिनरल। ठीक है, एंड सेकंड इज योर हेलोइसाइट। So if I say kaolinite and halloysite are present in the soil, will that soil show me the shrinkage and swelling property? No, right? अभी तो मैं बस एक आपको स्टार्टिंग फेज दिखा रहा हूँ, ये कैसे और ज्यादा इन डेप्थ कनेक्ट करने आपको चीजें, ये लेक्चर वाइज यू विल बी गेटिंग इट। तो अभी ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे, जितना मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वही समझो। ठीक है, नाउ ओवर हियर 2:1 एग्जांपल्स आर मॉन्ट मोरिलो नाइट। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू गाइज, एक बार मैंने भी इनकी इमेजेस ले रखी है, बट एक बार आप देख लो कि कैसे दिखते हैं मॉन्ट मोरिनोलाइट, केओलिनाइट, हेलोसाइट। आई एम टेलिंग यू, आपको एग्जाम के दिन भी याद नहीं रहने वाला, आपको इस लेक्चर के बाद भी याद नहीं रहने वाला, आपको नहीं करना है यार। लेकिन टाइम टू टाइम मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको, लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज, आगे भी कहीं यूज होंगे। वो चीज वापस रिस्ट्रेंथन करनी है आपकी। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए आई एम जस्ट टेलिंग। मॉन्ट मोरिलो नाइट। सेकेंड, वर्मीकुलाइट। जब ये आपको याद रहेंगे ना और आप एक आंसर में लिखोगे, और जो स्टूडेंट इसको इग्नोर करता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर दिस, राइट? लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे, आंसर में कहीं मेंशन करोगे दैट ये प्रॉपर्टीज क्यों शो हो रही हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिलिकेट क्ले मेटल्स टू केलोनाइट और हेलोसाइट में ये प्रॉपर्टी है, लाइक दिस यू हैव टू राइट। मैं आपको बताऊंगा भी, पहले एक नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, इलाइट, स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टीज दिस मॉन्ट मोरिनोलाइट, वर्मिकुलाइट एंड इलाइट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड कैटेगरी एग्जांपल इज क्लोराइट। एंड व्हाट आर दीज ऑल? दीज आर सिलिकेट क्ले मिनरल्स। ठीक है, सो व्हाट आर दीज? आई हैव टोल्ड यू कि ये सिलिकेट क्ले मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं, केलोनाइट, हेलोसाइट, मॉन्ट मोरिनोलाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट, क्लोराइट। ये हमें प्रॉपर्टी शो करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। Clay minerals, silicate clay minerals are basically your secondary minerals which are formed from the primary minerals. Their size is less than 0.02 mm and they are very reactive in nature. इतना कंटेंट प्राइमरी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कंटेंट बिल्डिंग कर रहे हैं, राइट? तो ये क्लासिफिकेशन आपने देखा लेयर्स के बेसिस पे।
सिलिकेट क्ले मिनरल्स का क्लासिफिकेशन देखा आपने लेयर्स के बेसिस पे। अब दूसरा सिलिकेट क्ले मिनरल्स का क्लासिफिकेशन आप देखोगे ऑक्सीजन शेयरिंग के बेसिस पे। Silica is having 4 valence electrons. That means it can combine with 4 oxygens, right? So over here, you can write either it is combining with 0 oxygens or 1 oxygen, 2 oxygen, 3 or 4, right? So that means if silicon 0 oxygen is there, 0 oxygen is attaching to the silicon element, then we will call it as nesosilicate. And as oxygens are getting connected, you will see that the structure will be getting stronger, right? अब ये structure की बात भी हम next class में करेंगे because वो physical property में आएगा। धीरे धीरे connection बनेगा guys, ठीक है? nesosilicate if 0 oxygen sharing is happening, if 1 oxygen sharing is happening, then so before going to 1, you also understand the example of nesosilicate, and you will find olivine as the example, topaz as the example, zircon as the example. And over here, when 1 oxygen sharing is happening, we call it as sorosilicate. Over here, the example of this particular sorosilicate is epidate. ठीक है, अभी याद नहीं करना इन सब चीजों को, बस समझो जो मैं याद करवाऊंगा, आई विल बी टेलिंग यू। If 2 oxygen sharing is happening, then inosilicates. Over here, you will find the example of pyroxene. Okay. 3 oxygen share, if you will see phyllosilicate, and phyllosilicate includes your all which we have seen 1 type and 2:1 type, that is kaolinite, right? All those which we have seen comes under over here, kaolinite and all in the last slide which we have seen, right? Over here you will get tectosilicate, and this tectosilicate gives us the 3D structure, and over here you will find the example as feldspar, quartz, mica, quartz. I hope you are understanding हम पढ़ कहाँ पर रहे हैं इन सब। Let me give you a brief overview again before moving ahead. We had started with minerals. Minerals definition is done or not? Can you give me the definition? Can you just repeat the definition which we have studied? Minerals are naturally occurring substances which are inorganic and homogeneous in nature, also having definite chemical properties and crystalline in nature. Now minerals are classified into on the basis of origin. We have seen origin के basis में जब आपने देखा classification, आपने देखा कि यहाँ पे प्राइमरी आता है मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स भी हैं। आपने देखा सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर सिलिकेट क्ले मिनरल्स आते हैं विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, जो कि हम आगे भी समझने वाले हैं। सिलिकेट क्ले मिनरल्स को समझने के लिए हमने समझा इसको लेयर्स के बेसिस में, और दूसरा इसको हमने समझा ऑक्सीजन शेयर के बेसिस में। अब मुझे इतना तो पता चल गया कि भाई मेरे पास लेयर्स के बेसिस पे कुछ क्लासिफिकेशन है सिलिकेट क्ले मिनरल्स की, और ऑक्सीजन शेयर के बेसिस पे भी है। तो मेरे पास सिलिकेट क्ले मिनरल्स के नेम भी है मेरे पास। अब फाइलोसिलिकेट्स, नेसोसिलिकेट, सोरोसिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट्स, ओवर हियर काइलोनाइट, हेलोसाइट, मोंटमोरिनोलाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट, क्लोराइट। ये नेम्स इंपॉर्टेंट, और ये आ कहां पर रहे हैं? एससीएम के अंदर। ये एज आपको आ रहा है गाइस, अदरवाइज बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, ठीक है। डायरेक्टली दे विल स्टडी सॉइल फॉर्मिंग एंड प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स, ठीक है, हम वहां तक पहुंचेंगे। अभी रुक जाओ आप। देखो यहाँ पर नेसोसिलिकेट, नेसोसिलिकेट के एग्जांपल्स यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। दीज आर मिनरल्स, दीज आर सिलिकेट क्लेई मिनरल्स। अब सॉइल कोई आपको सिर्फ मिनरल थोड़े ना है, सॉइल में तो बहुत कुछ है। अदरवाइज मैं मिनरल्स को ही सॉइल्स बोल देता अगर मेरे को मिनरल्स ही चाहिए होते, नहीं। इसीलिए मिनरल्स रॉक की फॉर्म में जा रहे हैं, रॉक रेगोलिथ की फॉर्म में जा रहा है, रेगोलिथ सॉइल की फॉर्म में आ रहा है। सॉइल कैसे बन रही है? क्योंकि वहां पर कुछ फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस काम कर रहे हैं जो हमें समझने हैं। सी ओवर हियर गाइस, ओलिवाइन, पायरोक्सीन, एम्फीपोल, क्वार्ट्ज, कैल्साइट। देख रहे हो? आपको कुछ भी नहीं देखना, आपने याद कुछ नहीं रखना है इसमें। आप जब नाम देखो
ये तो आपको वैसे भी याद नहीं रहने वाले कैसे दिखते हैं ये, ठीक है, लेकिन आपको हल्का बहुत आइडिया होना चाहिए दैट ठीक है, ये लिमोनाइट, जिप्सम ओवर हेयर, हैलाइट ओवर हेयर, दीज लुक्स लाइक दिस, ठीक है। हेमेटाइट आपको आयरन और देता है, ठीक है, आयरन एंड ऑल, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको समझनी है। तो कहाँ थे हम थे सिलिकेट क्ले मिनरल्स में। हम बेसिकली क्लासिफिकेशन में थे। पहला क्लासिफिकेशन ओरिजिन के बेसिस पे हमने देखा, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। So now first you have understood that minerals are being classified on the basis of origin. Now mineral classification you will see on the basis of second classification on the basis of chemical composition. Okay. On the basis of chemical composition you will find that either minerals are of oxides and hydroxides. This is one group. Second group is of carbonates. Third group is of sulfates. Fourth group is of sulfides. And fifth type, I have already told you, silicate clay minerals. Again, over here. And this we have studied already, silicate clay minerals. Rest are your, for example, oxides, you will find SiO2, that is quartz. Hematite is Fe2O3. Right? Limonite, do you remember the formula of remonite? No need to remember also, but just you try to. This is quartz. This is your hematite. Spelling एक बार check करना. No need to remember them, but carbonates are basically CO3 2 negative. So over here you will find CaSO4 sulfates. Sorry, this is sulfates, right? Over here you will find CaCO3 carbonates, sulfate CaSO4, sulfide CuS copper, or FeS2. Silicate clay minerals you have seen 1:1, 2:1. All this we have understood. So this is on the basis of chemical composition. Also, minerals are basically classified on the basis of weathering too. These are easy classification, guys. Weathering means how easy weathering can happen, how moderate weathering can happen, and how fast weathering is happening. On the basis of this, also you will find classification of minerals. So easy may you will find calcite, gypsum, olivine. Moderate may you will find apatite, the main source of phosphorus, apatite. Muscovite also you will see over here, muscovite. Or hard mineral over here, this is hard weathering. This is your quartz. Quartz is that particular mineral which is hard to get eroded or hard to get weathered. Also, fourth classification you will find on the basis of quantity. And on the basis of quantity, you will find some minerals as essential and some minerals as accessory minerals. So these essential minerals are basically silicate clay minerals, and these are important, very essential for the plants, for the soil. 98 to 99% are these only. Accessory minerals are for helping purposes, right? For example, apatite and feldspar. इन सब की इमेजेस एक बार देख लो जो मैंने स्लाइड में डाल रखी है. एपेटाइट इज फॉर फोस्फोरस एंड फेल्डस्पार इज फॉर पोटेशियम. सो ये आखिरी के एग्जाम्पल तो बहुत आसान हुए, ठीक है. व्हाट यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. बेसिकली minerals you have tried to cover, guys. Minerals classification you have seen on the basis of origin, on the basis of chemical composition, on the basis of your weathering, on the basis of your quantity. When we were seeing the origin, I have told you that remember about primary minerals, secondary minerals. Under primary minerals, I have taught you the examples. I hope you remember 0.002 mm large sand, silt, rest your feldspar, quartz, mica.
Secondary minerals, we have focused upon silicate clay minerals. Or then we have opened silicate clay minerals and we have classified them in the form of difference between, like classified in the form of layers and your oxygen sharing. आपको याद तो है जो पढ़ा हमने, कहीं भूल तो नहीं गए? अब लेयर की फॉर्मेशन में 1:1 में देखा हमने, रियली सॉरी, 1:1, 1:1, 2:1, 1, 2:2. ऑक्सीजन शेयरिंग में 0, 1, 2, 3, 4 दे आर नेसोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट्स एंड ऑल वी हैव सीन. एक बार दोबारा देखो जिसको याद नहीं है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था गाइस, यहाँ से आपको मेजर मिनरल्स के बारे में समझ आ रहा होगा. Chemical composition में we have seen that it chemically combined with oxides, hydroxides, carbonates, sulfates, sulfides and silicate clay minerals too. Okay, over here. Weathering के basis में you have seen easy weathered, moderately weathered, hard weathered. Hard weathered में I have gave you the example of quartz. Quantity के basis में you know essential minerals and your accessory minerals. अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है गाइस, राइट? दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. एज सून एज वी विल रीच अप टू एसेंशियल प्लांट मिनरल्स, देन आई विल बी पिकिंग अप सम 17-18 एसेंशियल प्लांट मिनरल्स. ओवर देयर वी विल सी. सारे मिनरल्स को मैं आपको इकट्ठा करके बताऊंगा कौन कौन से मिनरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. NPK, ये जो फर्टिलाइजर आप सुनते हो, ये कहाँ से आए, कैसे आए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. अभी सिर्फ एक ओवरव्यू इंपॉर्टेंट है मिनरल्स का. ठीक है. So this is the overview of minerals. अब मैं थोड़ा आपको कंटेंट दिखा देता हूँ. देखो, when you will see these slides, you will understand that primary minerals includes your ferromagnesium minerals, orthosilicates, olivine, pyroxenes, amphiboles. No need to remember. Non-ferromagnesiums, tectosilicates, feldspar. No need to remember. Secondary clay minerals means this is important. SCM. This is important, right? So you can read about feldspar over here, which I will not recommend. Don't read right now. Over the period of time, over as we will proceed in the lecture, जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको दोबारा बोलूंगा, यहाँ पर फोकस करना है. अभी फोकस मत करो, ठीक है? राइट टाइम पे राइट जगह मैं आपको बोलूंगा. ये आपको जरूर पढ़ना है क्ले मिनरल्स. ये जो मैंने आपको समझाया है, अभी आप देखोगे कीवर्ड्स हमने पढ़े हैं. सिलिकेट क्ले मिनरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी मिनरल्स due to weathering processes and the size are less than 0.022 mm to be the most reactive part of soil. हमने पढ़ा है. And these show the properties like nutrient holding and water holding capacity. आप देखोगे इसको 1:1 clay minerals में layer form में you will see layered silicates 2:1, 2:1 and 2:2. Alright. After that you will also see on the basis of oxygen sharing. And on the basis of oxygen sharing, you will see nesosilicates, where you will find zircon as the example. But don't go into the explanation much, right? I am telling you, this is not important, guys. Nesosilicate, inosilicates, phyllosilicates, this is important. Tectosilicates. ऐसे करके आपको ये जो मैंने पढ़ाया था, ये ध्यान में होना चाहिए. नॉन सिलिकेट मेटल्स में आपको आई हैव टोल्ड यू ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, सल्फाइड्स and your silicate clay matters will also. थोड़े बहुत एग्जांपल अगर याद रख सको रखना, अदरवाइज जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे वापस मैं आपको यहीं लेकर आऊंगा. डोंट वरी, ठीक है? ये बस शुरुआत है, अभी आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है. इट इज जस्ट स्टार्टिंग. और जहां पर फोकस नहीं करना, मैं कह रहा हूँ नहीं करना, बिकॉज आपका वो एग्रीकल्चरिस्ट माइंडसेट अभी नहीं बना है. आपका जो सॉइल में आपको सारी चीजें समझनी है वो नहीं अभी डेवलप हुई है, राइट? जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से रहा है वो जरूर इनको देख सकता है. बट आई वुड स्टिल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ, और फॉलो एज इट इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट आप इसको इस तरीके से भी देखोगे, नॉट इम्पॉर्टेंट. नेसोसिलिकेट, सोरोसिलिकेट को इस तरीके से भी देखोगे, नॉट इम्पॉर्टेंट. दिस आई हैव शोन यू. एक बार आप खुद से भी गूगल में चेक कर सकते हो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर हियर गाइस, ठीक है? तो वंस मोर, व्हाट वी हैव सीन, वी हैव अंडरस्टूड दैट elements are giving rise to minerals. Minerals, we have understood it in detail, and later on we will add more knowledge as we will move ahead. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपनी नॉलेज को ऐड करेंगे. But minerals are now consolidating into rocks. And then these rocks are weathered into regolith.
And then these regolith soil forming factors and soil forming processes are happening to give us soil. Okay, so next we have to understand about these rocks, guys, right? Very easy also to understand. And in geography also आपने पढ़ा है rocks को, sedimentary rock, igneous rocks, right? तो हम इसको बहुत ही short में cover करने की कोशिश करेंगे. So now we have to understand rocks. What do you mean by rocks, guys? Rocks are those materials which forms the essential part of earth crust. अभी अर्थ क्रस्ट अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको अर्थ क्रस्ट में रॉक्स मिलेंगे. These are formed from the molten magma or molten material, right? And this molten material is known as magma. And magma comes out of volcano. The study of rocks is known as petrology. The study of soil is known as pedology. This is petrology. And if we study the origin of rock, petrogenesis. This is known as petrogenesis. Yeah. See this cycle over here, guys, right? This is Earth's surface. Below it, there is a molten magma, you know. Molten magma will come out in the form of volcano. If the magma is inside the volcano, it will get solidified and it will be known as intrusive igneous rock. These igneous rocks are those type of rocks which are formed after getting solidified from magma. So if they are getting solidified inside the volcano itself, these are intrusive igneous rocks. If that molten magma is coming out, then it will be known as lava. So when lava gets solidified, जब lava solidify होता है, तो इसको आप बोलते हो extrusive igneous rock. So igneous rocks में you understand that there are two types, intrusive and extrusive. Then over the period of time, what will happen? Over the period of time, because of weathering, erosion, transportation, deposition, this particular weathering, deposition, erosion and transportation, this particular rock will convert into sediment, and these will be known as, under burial, compaction and cementation, it will be known as sedimentary rock. Then a sedimentary rock will be like converting into metamorphic rock because of heat, pressure, deeper burial, right? Changes will be happening because of heat and pressure. Same igneous rock can be converted into metamorphic rock, and then metamorphic rock will again be melting and forming into magma. So this is the rock cycle, guys, which you have to understand. This you will study in detail in your geography class also, in 11th class NCERT. But this is very simple. You understand. This is your magma. Magma coming out, forming igneous rock. Igneous rock over the time period, sediment, it will be converting into sedimentary. Igneous either will give you metamorphic or sedimentary will give you metamorphic. Metamorphic directly you will not get, right? And it will again be converting into magma. ठीक है भाई, तो ये cycle, rock cycle चलता रहता है. See this igneous rock, guys. The whole surface of the earth passed through a molten stage, and the first solid material was derived from this molten material known as magma. So from magma, first solid mineral, जो मैग्मा है आपका, इससे पहला सॉलिड जो आपको मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट igneous rock. Then igneous rocks are formed by cooling and crystallization of molten material magma beneath on or beneath the surface of the earth. तो igneous rocks में एक प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, crystalline, whereas sedimentary rocks are not crystalline in form. So igneous rocks which are cooled within the earth crust are called intrusive, and the volcanic rock that are cooled on the surface of the earth are called extrusive. And over here, igneous rocks example: granite, syenite, diorite, gabbro, dolerite, basalt. Basalt, granite, you have to remember in your geography class you will understand the acidic and basic character also. This I'll tell you in the
when I'll go in much deeper details. ठीक है, जब हम सॉइल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तब हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को भी रियलाइज करेंगे, अभी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट मींस जो इकट्ठा होता है एक जगह, राइट। सेडिमेंट, आप यहाँ से विंड एक एजेंट काम किया एंड ये वाले डिपॉजिट करे यहाँ पर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सॉलिडिफाई हो गया, ये सेडिमेंट्स है। लेयर बाय लेयर फीचर यू विल सी, इसमें लेयरिंग भी देखोगे एज सेडिमेंट्री में, वेयर एज इग्नियस में लेयरिंग नहीं, क्रिस्टलाइन नेचर का देखते हो आप, राइट। सो सेडिमेंट इज मटेरियल दैट सेटल्स ऑन द बॉटम ऑफ एवरीथिंग एल्स, usually a liquid. The sedimentary rocks are formed from sediments derived from breaking down of pre-existing rocks, right? So igneous rocks will go through this transportation, deposition, weathering, then it will be over the period of time, it will be consolidating, compacting and forming sedimentary rocks. These are composed of materials that have worn down by wind, water, ice deposits somewhere, right? स्ट्रैटिफिकेशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ दिस रॉक। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब अगर आप ये रॉक देखोगे तो इसमें आप स्ट्रैटिफाइड लेयरिंग फॉर्म में देख सकते हो, दैट लेयर बाय लेयर दे हैव अटैच्ड लाइक दिस, whereas igneous rocks were not layer, stratification was not there, crystalline nature was there, कि आप थोड़ा सा भी तोड़ोगे तो पूरा टूटेगा, राइट। Sedimentary rocks are classified into three subgroups: clastic sedimentary, chemical particulates, organic sedimentary. ठीक है, क्लास्टिक सेडिमेंट्री में आपके एग्जांपल्स आएंगे ओवर हियर सैंडस्टोन एंड शेल, वेयरएज केमिकल सेडिमेंट्री में आपका एग्जांपल आता है लाइमस्टोन। ठीक है, इंट्रूसिव में गैब्रू एंड ग्रेनाइट, एक्सट्रूसिव में बसाल्ट एंड रायोलाइट। देन देयर इज मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक मींस चेंज इन फॉर्म। व्हाई? बिकॉज दे हैव अंडरगॉन केमिकल और फिजिकल चेंज बिकॉज ऑफ हीट, प्रेशर। प्रेशर अगर लग रहा है तो डायनोमेटामॉर्फिज्म, हीट लग रहा है तो थर्मोमेटामॉर्फिज्म। ठीक है, इसके एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, फॉलिएटेड स्लेट शिस्ट, नॉन फॉलिएटेड क्वार्टजाइट मार्बल। फॉलिएशन मींस देयर विल बी रेगुलर फैशन ऑफ अरेंजमेंट, आप देखोगे इनमें। नॉन फॉलिएटेड में आप अरेंजमेंट नहीं देखते पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, so these are igneous sedimentary metamorphic guys. So we had started with atom, element. I have told you 108 elements are present, whereas 8 elements are more than enough to create our earth crust. Out of those, I have told you some non-metallic elements and metallic elements. Under this non-metallic elements, you have oxygen and silicon in greater presence. These elements only will convert to minerals. Minerals we have understood in greater detail. Later on, in the form of magma, these minerals will be coming down to form rocks. Rocks are either you will get igneous, sedimentary, metamorphic. Your job is to understand it from the 11th class NCERT too. Okay, this is your homework today. 11th class NCERT rock chapter you have to complete. Igneous में gabbro, granite, rhyolite, and one more is there, right? Sedimentary में sandstone, shale, limestone. Metamorphic में you have to realize the gneiss, marble. These examples should be on your tips. Right, now these rocks will be converted into regolith, and then this regolith will be converted into soil. So we have to reach over here, and for this class, soil forming factors and soil forming processes are important. Rest all is your background and the base basically which you need in order to understand this. ठीक है, अभी तक हम बेस बना रहे हैं अपना, which either you will study in geography और यहाँ से पढ़ लो, बात एक ही है। ठीक है, ये सेम कंटेंट आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, so over here you see that now rocks will be getting into transformed into regolith. Can we call regolith a soil? No. What is happening? Rocks are getting disintegrated and decomposed. What will happen basically? A large chunk of rock is basically converted into small pieces. These chunks, right? But this is not soil yet, because this is just the disintegrated and decomposed form of a particular rock. And rocks are nothing but minerals. Consolidated form of minerals are rocks. So this disintegration and decomposition which is happening because of various physical and chemical changes and biological changes is nothing but weathering.
That means over here we have to understand weathering of rocks is taking place and then giving us rise of a regolith. And regolith is nothing but an unconsolidated mass of rock. Particles of unconsolidated. Because if it will be consolidated, then it will be rock. Consolidated means ये पूरा join होना. ठीक है? तो disintegration and decomposition are the keywords for weathering. You understand now? We have to understand weathering, guys. So weathering is nothing but a process of disintegration and decomposition of what rocks and minerals brought about by physical, chemical, and biological agents. So these agents are responsible for disintegration and decomposition of rocks and minerals. Or you can say the breaking down of Earth's crust is also known as weathering. Or you can say the process of conversion of rocks into regolith is also weathering. Okay. So you understand different types of weathering. Over here, types of weathering, if you will understand, then if physical agents are taking place, then you will call it as physical weathering. Over here, if chemical agents are working upon, you will say chemical weathering. देखो अलग अलग कुछ एक्ट नहीं करता एक पर्टिकुलर रॉक में. एक पर्टिकुलर रॉक में फिजिकल वेदरिंग भी हो रही होगी, केमिकल वेदरिंग भी हो रही होगी, एंड थर्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो रही होगी. ठीक है, ये तो बट ऑब्वियस है. आइसोलेशन में कुछ काम नहीं करता. ठीक है गाइस. अब फिजिकल वेदरिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मैटर्स, फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक. रॉक की फिजिकल कंडीशन कैसी है, समझ रहे हो? फिजिकल कंडीशन मींस परमिएबिलिटी कैसी है रॉक की. इफ रॉक इज टू मच परमिएबल देन रॉक विल इजीली वेदर डाउन. परमिएबिलिटी कम है तो रॉक इतनी आसानी से वेदर नहीं होगा. राइट. सो फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट. सेकेंड, फिजिकल में आ जाता आपका एक्शन ऑफ टेम्परेचर. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. देखो एक्शन ऑफ टेम्परेचर से क्या होता है, ड्यूरिंग द होल डे रॉक्स विल बी एक्सपैंडिंग बिकॉज हीट ज्यादा होगी. हीट ज्यादा होगा तो क्या होगा, रॉक विल बी एक्सपैंडिंग. तो एक्सपेंशन होगा दिन में. नाइट में क्या होगा, और एट कोल्डर प्लेसेस व्हाट विल हैपन, कंट्रैक्शन. सो दिस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, उसकी वजह से एक स्ट्रेस पैदा होता है रॉक में, एंड दैट बेसिकली टूट जाते हैं. आपने देखा है रॉक टूट जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. So that is happening because of action of temperature too, right? Similar goes for action of water. देखो ये सेम चीज आपने पढ़नी है वेदरिंग का कंसेप्ट 11th क्लास ज्योग्राफी से, 11th क्लास एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी. इससे हो क्या रहा है, वट एवर वी हैव टू स्टडी फ्रॉम वन प्लेस. आपने यहां से पढ़ा, वहां से भी एक बार आप देखोगे तो आपका ज्योग्राफी का वेदरिंग का कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा. वेदरिंग होती सेम है लेकिन वहां पर वेदरिंग कुछ ज्यादा ही डिटेल में है गाइस. उतना डिटेल में हमें यहाँ नहीं देखना, बट ऑल्सो यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर. राइट. एक्शन ऑफ वाटर. सो वाटर एक्ट एज द, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसइंटीग्रेट करेगा ये किसी भी रॉक को. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स यू हैव सीन water, these rivers cut the big mountains too, right? So over the period of time it is happening. So it disintegrate, it also transport, and it also deposit. So in geography you must have seen the depositional and erosional feature of water or river, right? तो हमें इतना डिटेल में नहीं देखना, but you understand action of water is also taking place. There will be action of freezing too. Freezing in colder places, in ice places, completely glacier places, you will find this feature, action of freezing. One more point over here, action of wind too, right? Wind की वजह से भी आपको देखने के मिलते हैं erosional features. erosion होता है ना उससे, right? तो action of wind too, आप यहाँ पर एक और point add करो. ठीक है. chemical weathering.
केमिकल वेदरिंग इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, डिकम्पोज हो जाते हैं रॉक्स, राइट, दैट इज बिकॉज ऑफ केमिकल एजेंट्स वर्किंग अपॉन दैट. So decomposition of rocks and minerals by chemical processes is basically your chemical weathering. Chemical weathering में क्या क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मतलब आप समझ रहे हो, हाइड्रेट, कीप हाइड्रेटिंग मतलब क्या होता है? पानी पीते रहो. तो हाइड्रेशन विल बी एडिशन ऑफ H2O. देखो अब ये हाइड्रेशन का एक्सेप्शन मैं बताता हूँ आपको. इन 1:1 SCM क्ले, जहां पर सिलिकेट क्ले मिनरल 1:1 होंगे, केलियोनाइट, वहां पर ये हाइड्रेशन नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रेशन मीन्स H2O will enter, will work, केमिकल रिएक्शन होगा बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस H2O. इस H2O के एडिशन से कुछ केमिकल रिएक्शन होगा एंड समथिंग विल बी फॉर्म्ड. मैं आपको एग्जांपल अभी बताऊंगा, डोंट वरी. अनदर, देखो दूसरा केमिकल एजेंट कौन सा था? एक तो हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस. सेकेंड हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस इज नथिंग बट यहाँ पर H2O टूटता है. H2O will convert into H positive and OH negative. अब ये अलग अलग जाके रिएक्शन करेंगे एंड इट विल बी चेंजिंग द प्रोडक्ट. समझ रहे हो? हाइड्रेशन में तो आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस में आपका H2O विल ब्रेक डाउन. ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से. ठीक है, अभी देखते हैं उसको क्या क्या एग्जाम्पल होंगे. फर्स्ट हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस. ओवर हेयर यू विल सी कार्बोनेशन ऑल्सो, एडिशन ऑफ कार्बोनेट. इसके एग्जाम्पल भी आई विल बी टेलिंग यू. देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी आई विल बी टेलिंग यू. ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ये भी अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँ. बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या इंक्लूड होता है? बायोलॉजिकल मीन्स कोई भी लिविंग थिंग अगर इंटरफेयर कर दे वेदरिंग के किसी भी रॉक के साथ, तो कैसे हो सकता है? सो मैन एंड एनिमल विल बी इंक्लूडेड ओवर हेयर. भाई एनिमल्स पुट होल कर देते हैं रॉक्स में, राइट. मैन ऑल्सो कट दीज पर्टिकुलर रॉक्स. ठीक है, तो ये सब बायोलॉजिकल वेदरिंग में आएगा आपका. हाइयर प्लांट्स एंड रूट्स एंड योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर degrading of these rocks or weathering of these rocks, right. Let me show you the table over here. See, weathering definition you understand guys. Disintegration and decomposition of rocks and minerals by physical, chemical and biological भी आप यहाँ पर ऐड करो. ठीक है, तो ओवर हेयर मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. मैकेनिकल फिजिकल की वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है सर, केमिकल की वजह से डिकम्पोजिशन होता है, बायोलॉजिकल में डिसइंटीग्रेशन भी होगा एंड डिकम्पोजिशन भी होगा. ठीक है, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5, यू हैव सीन 5 एजेंट्स. विंड का एक्शन, वाटर का एक्शन, चेंज इन टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक एंड एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फिनोमेना. 6 इन केमिकल, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिस, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. ये हम देखेंगे थोड़ा इन डिटेल. बाकी तो आपका सेल्फ अंडरस्टूड है चीजें, राइट. डिसइंटीग्रेशन में यू विल सी मैन, एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड देयर रूट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये सब देखते हैं. देखो केमिकल वेदरिंग के एग्जांपल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लाइड्स में मेंशन्ड है, सारा कुछ आपको दिखेगा. बट ओवर हियर हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ H2O, और H2O की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको एग्जांपल रटने होंगे. दो आई विल बी गिविंग यू 2 एग्जांपल कि आप ये रटो और एज इट इज एग्जाम में लिखना. ओनली वंस, एक बार ही ये क्वेश्चन आया दैट व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग और व्हाट इज वेदरिंग, डिफरेंट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग बताओ. एक बार क्वेश्चन आया. चांसेस है कि इस पार्ट से क्वेश्चन कम आएगा, लेकिन अगर आ गया गलती से तो आपके पास फिक्स्ड कंटेंट है. समझो आप इसको, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले. अभी तक जो हमने अभी तक जो देखा वो एक बेस बनाने के लिए था. वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली अभी नहीं आने वाला, और आएगा तो रेयर चांसेस है. क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है? सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. चांसेस आर ह्यूज कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो वहां तक अभी हमने पहुंचना है. तो हेमेटाइट Fe2O3 में अगर हम ये H2O ऐड कर दे तो इट गिव्स अस लिमोनाइट. Fe2O3 3H2O, सिंपल. Al2O3 में 3H2O ऐड करोगे, बॉक्साइड विल बी कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, और ये वाला एग्जांपल भी बहुत अच्छा है. कैल्शियम सल्फेट में H2O ऐड करोगे तो जिप्सम विल बी क्रिएटिंग. तो ये वाला एग्जांपल है कि आप ध्यान में रख सकते हो, और एक ये वाला एग्जांपल. ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ दिस H2O, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव. तो H पॉजिटिव कहाँ जाके जोड़ेगा हमारे यहाँ पर?
और OH नेगेटिव से यहाँ पर आपका बन जाएगा एसिड सिल्ट क्ले, ऑर्थोक्लेज विल बी कन्वर्टिंग इनटू एसिड सिल्ट क्ले, ठीक है। सो इट इज बेसिकली द dissociation of H2O into H positive and OH negative ions which chemically combine with minerals and bring about changes such as decomposition of crystalline structure and formation of new compounds, ठीक है। नाउ इस हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या होता है, इस हाइड्रोलिसिस की वजह से ये होता है दैट क्ले बेसिस और सिलिकिक एसिड जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं प्लांट्स में इसके जरिए। नेक्स्ट इज योर सॉल्यूशन। Solution means some substances which are directly soluble in water gets chemically changed, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट NaCl H2O से मिलके हमारा Na positive Cl H2O gives us this, right? This gets separated over here, solution. Next is your carbonation. Carbonation is carbon dioxide when dissolved in water it forms carbonic acid. So H2O and CO2 will be giving you H2CO3. यही लेटर ऑन जाके एसिडिफिकेशन में भी कन्वर्ट होता है विच यू विल स्टडी इन एनवायरनमेंट। So this carbonic acid attacks many rocks and minerals, bring them into solution. और इस कार्बोनेटेड वाटर का क्या इफेक्ट होता है, एचिंग इफेक्ट अपॉन सम रॉक्स लाइक लाइमस्टोन। तो इसकी वजह से इरोजनल फीचर आपको देखने को मिलते हैं लाइमस्टोन लैंड्स में विच यू विल स्टडी इन योर 11th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड के साथ इट गिव्स अस कैल्शियम बाइकार्बोनेट which is readily soluble, right guys? Oxidation is addition of oxygen and removal of hydrogen, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। Also Leo sounds गर, Leo means loss of electron is oxidation, whereas reduction is addition of hydrogen, removal of oxygen and gain of electron। तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड ऑक्सीजन इनटेक करेगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। मैग्नेटाइट विल इनटेक ऑक्सीजन Fe2O3, सेम रिडक्शन क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन अगर हाइड्रोजन का यहाँ पर हो रहा है तो ये हमारा रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो व्हाट वी हैव सीन ओवर हियर इज योर केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। These are really very important. Question will come directly on different agents of weathering and you have to make this table and explain this table basically, okay। Biological weathering में you will see the action of man and animals. Action of man, how they are directly disintegrating rocks for multiple usage, hunting, tools, dams and all to come right now। अभी ये सब चीजें चल रही है, लेकिन अर्ली मैन क्या करते थे, हंटिंग के लिए यूज करते थे, टूल्स के लिए यूज करते थे, स्टोन टूल्स थे ना। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पेलियोलिथिक एज मेसोलिथिक एज में चल क्या रहा था, यूज ऑफ डिफरेंट स्टोन टूल्स, तो वहां पर टूल्स यूज होते थे। Some ants, termites build galleries, passages, carry materials in these particular by making cracks, holes in the rocks, ठीक है। Rabbits by burying into the ground, ठीक है, ये soft rocks को destroy करते हैं। Higher plants and roots को आपने देखा होगा, certain roots destroy completely the rocks अगर उनके पाथ में आता है तो ये they penetrate into the joints and surfaces of the rocks। You must have seen, अभी आप जहाँ पर रहते होगे तो पीपल ट्री को आपने देखा होगा, पूरा एकदम क्रैक डेवलप कर देता है किसी भी वॉल और अगर आसपास है ये, तो दैट्स वाई जब भी आप नया घर लेते हो और घर लेते हो आप अपने छत में अगर पीपल ट्री ग्रो हो जाता है तो उसकी जड़ से आपको इसको हटाना होता है, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो देयर, मिनरल डिकम्पोजिशन एंड सॉइल फॉर्मेशन। सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली नॉट अफेक्टिंग इट बट केमिकल चेंजेस ये भी लाते हैं बिकॉज आफ्टर देयर डिके basically they liberate nutrients for the use of next generation plants, right? They also produce CO2, so CO2 will act into carbonation process, ये तो मिनरल डिकम्पोजिशन में इट occurs, mineralization which we will study later on। तो ये कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते वो आगे जाके कंबाइन होगा, अभी तो ये लेक्चर 1 है, जस्ट एट ओवरव्यू आप लो चीजों का, ठीक है। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेदरिंग गाइस। यू अंडरस्टैंड दैट वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम द एटम, देन वी हैव रीच्ड टू द एलिमेंट। एलिमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन देखी थी, 108 एलिमेंट, आउट ऑफ दैट 8 आर इंपॉर्टेंट, these 8 only are forming minerals। यहाँ पर हमने पूरा मिनरल्स को we have opened it up, we have seen different classification of minerals, out of those silicate clay minerals are very important for us। Minerals will be getting into consolidated into rocks, igneous, sedimentary, metamorphic, then weathering process is taking place, disintegration and decomposition will be taking us to the regolith। and what is regolith? An unconsolidated mass, right? So over here regolith is your unconsolidated residue,
तो ये हमने जो पहली स्लाइड में देखा था, that over here now from rocks regolith we have got. now comes the, अब जो हमें पढ़ना है इस क्लास के लिए, जिस क्लास को जो टॉपिक हमारे सिलेबस में लिखा गया है, that regolith will be converted into soil. ठीक है, और ये रेगोलिथ से सॉइल कन्वर्ट होने में आपको यहाँ से जाना पड़ेगा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के थ्रू एंड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस के थ्रू. Two things are acting simultaneously on this regolith to form soil, right? Because regolith is containing the disintegration and decomposition of mineral material only. But soil में सिर्फ mineral material ही नहीं होता, soil में mineral material के अलावा organic matter भी होता है, soil water भी होता है, soil air भी होता है. ये कंपोजिशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आफ्टर लर्निंग सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. ठीक है गाइस, so now you have to understand the syllabus topic soil forming factors, that is SFF. Whenever you talk about soil forming factors, that what are the factors that forms soil, guys? So you will remember three scientists, Dokuchev, ठीक है, डोकुचेव इन 1889. ये साइंटिस्ट के नेम्स आपको जरूर मेंशन करने हैं. सेकंड कम्स जेनी एंड थर्ड कम जॉफी. जेनी 1941, जॉफी 1949. ये थ्री साइंटिस्ट, दैट मीन्स सबसे पहली बार अगर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स किसी ने दिए तो वो फादर ऑफ सॉइल साइंस. डोकुचेव को फादर ऑफ सॉइल साइंस भी बोला जाता है. सॉइल साइंस के फादर डोकुचेव ने दी. सेकंड, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसी डेफिनेशन को और सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स को मॉडिफाई किया जेनी ने, एंड लेटर ऑन 8 साल बाद इसी को मॉडिफाई किया जॉफी ने. तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स की जब भी बात हो, एसएसएफ की जब भी बात हो, तो भाई ये तीन साइंटिस्ट आपको तुरंत याद आ जाने चाहिए. ठीक है, डोकुचेव, जेनी, जॉफी साइमल्टेनियसली. अब डोकुचेव ने जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स बताए वो एक इक्वेशन के तहत बताए. दैट आपको एक इक्वेशन याद रखनी है और ये इक्वेशन बेसिकली सिग्निफाई करेगा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स. सो ही गेव द इक्वेशन एज S is equal to F and he gave Cl PO. What do you mean by that? Cl means climate, P means parent material, O means organisms. So C means, write it down guys, climatic environment, parent material, O means organization and organisms and vegetation basically, right? Over the period of time, Jenny said that not these three factors do not only comes into picture, there are other factors also which are responsible for the formation of soil, and he gave the equation as chlor PT. You remember like this, chlor PT, chlor PT or chlorpat, remember like this. Cl climatic, climatic, right? O means organisms and vegetation, R means relief, parent material and time. Later on Joffe came and Joffe said that okay, these factors are fine, but these factors are divided into active factors which are providing energy to the process and passive factors which are providing mass to the formation of this soil. So he divided these factors into active factors and passive factors. So passive factors में are relief, parent material and time will come. Active factors means which are giving energy, climate will come and organism will come, right? तो इन्हीं को अब थोड़ा डिटेल में पढ़ना. ये आपका शॉर्ट नोट्स की तरीके से तैयार हो जाना चाहिए गाइस. दैट अगर आया तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स को मैंने ऐसे ध्यान में रखना है. अब ये फैक्टर्स काम कैसे कर रहे हैं एक एक करके देखेंगे. बेसिकली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ClOPRT को समझना है आपने. ये फैक्टर्स काम कैसे कर रहे हैं इन फॉर्मिंग द सॉइल. क्लाइमेट कैसे काम कर रहा है, ऑर्गेनिज्म कैसे काम कर रहे हैं, पेरेंट मटेरियल कैसे काम कर रहा है. पेरेंट मटेरियल इज नथिंग बट रेगुलेट नाउ. रिलीफ कैसे काम कर रहा है, टाइम कैसे काम कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. क्लोरपिट, राइट. तो फर्स्ट इज योर क्लाइमेट
और फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड पेरेंट मटेरियल. ओके, parent material. So parent material is providing you the mass from which soil is getting formed. So this mass only it is getting converted into soil. यहाँ पर आपको दो टाइप ऑफ पेरेंट मटेरियल मिलेंगे. वन इज सेडेंटरी, अनदर वन इज ट्रांसपोर्टेड. सेडेंटरी मीन्स द पेरेंट मटेरियल इज एट लोकेशन ए, तो यहीं पर ये सॉइल फॉर्मेशन हुई है, दैट मीन्स सेडेंटरी. ट्रांसपोर्टेड मीन्स आप पेरेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स गेट ट्रांसपोर्टेड टू सम अदर प्लेसेस, और वहां पर फिर इसका फैक्टर काम करता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेड. अब ट्रांसपोर्टेशन कितने तरीके से हो सकता है, या तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है कि हिली एरिया में था, नीचे आया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. विंड की वजह से हो सकता है, पेरेंट मटेरियल विंड की वजह से खिसक सकता है. वाटर की वजह से हो सकता है, आइस की वजह से हो सकता है, राइट. और यही डिपोजिशनल फैक्टर्स भी आप पढ़ते हो. अच्छा, अगर ग्रेविटी की वजह से सपोज ये टॉप मटेरियल माउंटेन हिल्स में गिरते गिरते यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इसे क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलता हूं मैं कोलुवियम. क्या बोलता हूं, कोलुवियम. ठीक है. तो कोलुवियम इज पुअरली सॉर्टेड मटेरियल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द हाइट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. दीज आर जनरली बिकॉज ऑफ स्लोप्स. विंड से अगर कोई पेरेंट मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इओलियन. नेम इज इंपॉर्टेंट. वाटर से अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट मटेरियल तो एलुवियल, मरीन एंड लोकस्ट्राइन. और अगर आइस से हो रहा है तो मोरेन. ओ सॉरी, नॉट मोरेन बट ग्लेशियल. एंड ओवर हेयर दिस इज नॉट मरीन बट मोरेन ओनली. वाटर से जो ट्रांसफर हो रहा है मोरेन. ठीक है. लेट मी शो यू ऑल्सो. देखो यहाँ पर कोलुवियम यू इट इज पुअरली सॉर्टेड मटेरियल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्लोप ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. एलुवियम, लोकस्ट्राइन और मोरेन किसकी वजह से है, these three are because of water, so deposited, transported and deposited by water. Locustrine, these are settled out quite water of lakes. Moraine is all the material picked up, mixed up, disintegrated, transported, deposited through the action of glacial ice. Loess or aeolian is because of wind. Loess is the type of soil also you will find in China when you will study geography, world geography. Aeolian because of wind. Right. So pause the video, try to read them out. So this is your parent material. Next is your relief or topography. It also affects the formation of soil. Now relief topography की वजह से you will find that या तो soil form हो रही होगी flat surfaces पे, या तो undulating surfaces पे, या तो डिप्रेशन वाले एरियाज में. डिप्रेशन मतलब अगर ये लैंड है तो यहाँ पर बीच में आप देखोगे थोड़ा सा डिप्रेसिंग एरियाज होगा, डाउनवर्ड एरिया. अनडिलेटिंग एरियाज आर लाइक दिस, फ्लैट एरियाज आर कंप्लीटली फ्लैट. तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर्म होती हैं. लेट मी शो यू. तो क्या चीजें हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल रिलीफ कितने टाइप का होता है, फ्लैट होगा और ऑलमोस्ट फ्लैट, जेंटली अंडुलेटिंग, अंडुलेटिंग, रोलिंग, हिली, स्टीप. तो इनकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन डिफरेंट होता है डिफरेंट एरियाज में. माउंटेनियस सॉइल्स आर डिफरेंट, प्लेन सॉइल्स आर डिफरेंट, कोस्टल सॉइल्स आर डिफरेंट, राइट. तो ये आप लेटर ऑन भी समझोगे इसको कनेक्ट करते हुए. सो ओवर हियर यू विल अंडरस्टैंड सॉइल फॉर्मेशन ऑन फ्लैट टू ऑलमोस्ट फ्लैट पोजीशन. So they have normal soil. Soil means soil with distinct horizons. All horizons will be developed over here, you will see. Whereas in undulating topography, you will see soil as shallow, stony, and have weakly developed profiles. What is soil profile? अभी पढ़ेंगे, right? क्योंकि undulating surfaces में आपको erosion ज़्यादा देखने को मिलेगा. जहाँ accelerated erosion देखने को मिलेगा आपको, वहाँ पर horizon तो develop होंगे ही नहीं. upper horizons आपको missing लगेंगे. ठीक है. सर्टेन प्लेसेस सॉइल फॉर्मेशन इन डिप्रेशन रीजन में कैसे होता है. सो ओवर हियर यू विल फाइंड मोर डिके ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स. ठीक है. अनदर फैक्टर इज योर टाइम गाइस. तो अभी तक हमने क्लाइमेट देखा, रिलीफ देखा, टाइम देखा. तो आप ये क्या समझ रहे हो, ये पैसिव फैक्टर्स हैं. एज पर जेनी दीज आर पैसिव फैक्टर्स.
These are acting as over here, sorry, not climate, but parent material, PRT. They are providing mass, right? Relief is also providing mass, whereas active factors will be working on these passive factors to form soil. तो टाइम के साथ साथ आपने देखा है सॉइल और भी बेहतर होती हुई चली जाती है. इट इज सेड दैट 1 सेंटीमीटर सॉइल को करीब करीब 100 साल लगते हैं बनने में, इतना 1 सेंटीमीटर सॉइल. और मैच्योर सॉइल मींस जिनकी प्रोफाइल, जिनका होराइजन पूरा डेवलप होता है. होराइजन क्या चीज होती है अभी हम देखेंगे, प्रोफाइल क्या चीज होती है हम देखेंगे. इट टेक्स 100 years टू डेवलप एन इंच ऑफ एन सॉइल. 2.5 सेंटीमीटर डेवलप होने के लिए 100 साल लगते हैं. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर गाइस. जितना ज्यादा टाइम उतनी अच्छी सॉइल प्रोफाइल, राइट. और जिस रेट से हम डिग्रेड करते हुए जा रहे हैं सॉइल को, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू रीगेन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट सॉइल, राइट. इसीलिए डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल काफी देखने को मिल रही है, ठीक है. सो सॉइल फॉर्मेशन में सबसे पहले इनिशियल स्टेज आती है जहां पर अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल होगा. फिर आता है जुवेनाइल स्टेज, वेदरिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है. विराइल स्टेज, senile stage, and then final stage where soil development completed under prevailing environments, right. अब ये अलग अलग फैक्टर्स लाइक पेरेंट मटेरियल, रिलीफ, टाइम, ये कोई आइसोलेशन में वर्क नहीं कर रहेगा इस कि पेरेंट मटेरियल एक बार काम कर रहा है, रिलीफ अलग से काम कर रहा है, टाइम अलग से काम कर रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे क्लाइमेट और ऑर्गेनिजम्स अलग से काम कर रहे हैं, इनएक्टिव फैक्टर्स. नो, ये सारे साइमल्टेनियसली अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस के साथ काम कर रहे हैं, और ये हमें फिर बना के दे रहे हैं हमारी important, the most important thing is soil, because वहीं से आपको सब कुछ मिल रहा है, right. Next you come to active soil forming factors, and over here only two things, climate and organism. देखो जब भी क्लाइमेट की बात आएगी, दो चीजों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. वन इज योर टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर रहता है. अगर वो डेजर्टिक रीजन है, एरिड रीजन है, वहां टेम्परेचर हाई रहेगा. अगर वो पोलर रीजन है और टेम्परेट रीजन है, वहां टेम्परेचर कम रहेगा. रेनफॉल एरियाज, क्लाइमेट में हमेशा टेम्परेचर और रेनफॉल की बात होती है. हैवी प्रेसिपिटेटिव एरियाज, लेस मॉडरेट प्रेसिपिटेटिव एरियाज और लेस प्रेसिपिटेशन एरियाज. अलग अलग जगह अलग अलग चीज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एरिड क्लाइमेट देख रहे हो बिकॉज यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम हो, तो यहाँ का सॉइल फॉर्मेशन अलग होगा. ह्यूमिड क्लाइमेट का सॉइल फॉर्मेशन अलग होगा. ये सॉइल फॉर्मेशन कैसे होगा, कहाँ पर होगा, वो हम देखेंगे अंडर सॉइल्स ऑफ इंडिया. कहाँ कहाँ पर कौन सी सॉइल है, ये आपका 11th क्लास ज्योग्राफी में भी आपको ये चैप्टर मिलेगा, ठीक है. मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेशन होती है सॉइल की. सो ये बेसिकली क्लाइमेट वर्क कहाँ पर कर रहा है, ये वर्क कर रहा है हमारे पेरेंट मटेरियल पे, रिलीफ पे, और हमारा टाइम, ठीक है. टाइम के हिसाब से क्लाइमेट कैसे चल रहा है, रिलीफ पे कैसे काम कर रहा है, पेरेंट मटेरियल पे ये एक्टिव फैक्टर कैसे काम कर रहा है, ठीक है गाइस. सो ओवर हियर आई हैव टोल्ड यू प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर. So this rainfall basically brings about redistribution of substances both soluble as well as suspension in soil body, right. यहाँ पर आप देखोगे कि हाइयर टेम्परेचर हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ लीचिंग एंड कॉजेज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स. ये अभी आप समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये मैं आपको ढंग से समझाऊंगा हाउ प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है. हाई रीजन में जहाँ प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो जाती है वहां पर सॉइल कैसे डिग्रेड करती है, टेम्परेचर की वजह से कैसे फर्क पड़ता है, ये यहाँ पर नहीं समझना, ठीक है. ये ओवर द पीरियड ऑफ दीज लेक्चर्स, दीज 10 लेक्चर्स, 9 to 10 लेक्चर्स, वी विल ट्राई टू कवर इट. तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा. ओके, जो पहली क्लास में हमने फैक्टर पढ़ा था टेम्परेचर, हाउ इट इज अफेक्टिंग, प्रेसिपिटेशन की वजह से कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है. तब सारी चीजें कनेक्शन में देखेंगे. अभी सिर्फ आप हेडिंग देखो मोटा मोटा और एक बार रीड करने की कोशिश करो, ठीक है. नाउ ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल. देखो गाइस, अब सॉइल का कंपोजिशन समझना है आप, ठीक है. ये सॉइल का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. रेगोलिथ और सॉइल में फर्क क्यों है, रेगोलिथ सॉइल क्यों नहीं बोलते हम रेगोलिथ को, बिकॉज रेगोलिथ इज जस्ट फ्रेगमेंटेड पार्ट्स ऑफ रॉक, वेयर एज सॉइल इज हैविंग मोर देन दैट. क्या बनाया मैंने, ये देखो, दिस इज 45%, दिस इज 5%, टोटल कितना हो गया 50%. अब ये 45% एक सॉइल कंपोजिशन में, एक आइडियल सॉइल में यू विल फाइंड दैट दिस इज योर मिनरल मैटर.
अब ये मिनरल मैटर आया कहां से? रेगोलिथ से. दिस 5% इज योर ऑर्गेनिक मैटर. बोथ ऑफ देम इफ यू विल कंबाइन यू कैन से दिस इज द सॉलिड पार्ट ऑफ सॉइल. अभी सिर्फ 50% का देखा हमने सॉइल को, वेयर एज अगर आप रेगोलिथ को खोल के देखोगे तो वो 100% मिनरल मैटर होगा. रेजिडू किसका है? वो रॉक का. रॉक क्या है? एक मिनरल, कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स. अब यहां पर रह गया 50% एंड 50%. ये 50% आपको बोलते हैं सॉयल वाटर. इस सॉइल में वाटर भी होगा. और ये वाटर आया कहां से? क्लाइमेट की वजह से, टेम्परेचर. ये ऑर्गेनिक मैटर कहां से आया? ऑर्गेनिजम्स की वजह से, एक्टिव फॉर्मिंग फैक्टर. मिनरल मैटर कहां से आया है? पेरेंट मटेरियल के थ्रू. और ये 50% आपको बोलते हैं सॉयल एयर. और इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो इसे बोलोगे आप बेसिकली द नॉन सॉलिड पार्ट ऑफ सॉयल. ठीक है, इन्हीं को हमने डिटेल में पढ़ना है ओवर द पीरियड ऑफ दीस लेक्चर्स. बट दिस इज अ सॉयल कंपोजिशन. ठीक है, ये आप समझे. 45%, 5%, टोटल 50%. 50% एंड 50% यहाँ पर कितना हो गया? 100%. नो सॉरी, आई हैव this is 25% and 25%. I'm really sorry guys. Total 50, 50, 100. ठीक है. So this is your soil composition. So I hope under soil forming factors you have to read this PDF again, and what you will find that it is divided into active and passive factors. देखो बुक में भी अगर आप देखोगे सेम चीज आपको मिलेगी. ठीक है. एक्टिव फैक्टर्स आर बेसिकली योर एनर्जी प्रोवाइडिंग. एनर्जी कौन दे रहा है आपको? ऑर्गेनिजम्स. आपको कौन दे रहा है? क्लाइमेट. whereas these active factors working upon passive factors, that is parent material. That is relief and that is time. ठीक है, इजी है. आपने ध्यान में रखना है तो कुछ जेनी एंड जॉफी को. ठीक है, कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए. नाउ द टर्न ऑफ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, SFP. These soil forming factors and SFP are working together to give us the soil, guys. Soil forming processes are of two types basically. One, you will find the fundamental processes which or general processes which keep on happening. जो ये होते जा रहे हैं फंडामेंटल प्रोसेस, ये तो होंगे ही. कुछ होते हैं स्पेसिफिक प्रोसेसेस, स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेसेस. अब पीडोजेनिक मतलब क्या होता है? पीडोजेनिक इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. तो SFP को आप पीडोजेनेसिस भी बोल सकते हो. पीडोजेनेसिस. ठीक है. अब फंडामेंटल प्रोसेसेस में क्या क्या आता है आपका? ए, दैट इज ह्यूमिफिकेशन. सेकंड, एलुविएशन. थर्ड, इलुविएशन. क्या होते हैं ये? हम समझेंगे इनको, डोंट वरी. फोर्थ, हॉरिजोनाइजेशन. ठीक है, दीज आर फंडामेंटल प्रोसेसेस. अनदर स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेसेस मींस ये एक स्पेसिफिक लोकेशन में होते हैं एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू जोनल एंड इंट्राजोनल. इंट्राजोनल, जोनल का मतलब क्या समझते हो आप? जोनल मींस जिसमें प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप हो रखी होती है. सॉइल प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप हो रखी होती है. आप लेयर बाय लेयर यू कैन फाइंड द डिफरेंस. ठीक है, परफेक्ट सॉइल है, इसको कंप्लीट टाइम हुआ है और वेदरिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ है एंड देन सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड. इंट्राजोनल वो है जो कंप्लीट नहीं हो पाते बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द सॉइल. प्रॉब्लमेटिक सॉइल वाला एरिया इंट्राजोनल में आता है. और एक आता है ए जोनल. ए जोनल में प्रोफाइल ही आपकी डेवलप नहीं हो रखी होती बिकॉज सफिशिएंट टाइम हैज नॉट बीन देयर. उसको जितना टाइम चाहिए उस सॉइल को उतना टाइम नहीं लगा, इसलिए वो ए जोनल कैटेगरी हो गई. तो ए जोनल कैटेगरी में यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट कैल्सिफिकेशन, decalcification. Third, podzolization. Fourth, laterization. ये स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस चल रही है आपकी जोनल एरियाज में. दिस इंट्राजोनल में यू हैव ग्लीजेशन. क्या होता है? वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट. सैलिनेशन, सोलोनाइजेशन,
फोर्थ इज योर सोलोडाइजेशन, डिफरेंस अभी मैं आपको सब बताऊंगा, डोंट वरी। फिफ्थ इज योर, ये ढक रहा होगा, डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग यू, पीडो टर्बेशन। 5 intrazonal, 4 zonal, and 4 fundamental process. This is the thing which you have to study for soil forming processes, also pedogenesis. This is acting simultaneously with the factors which are giving rise to the soil, right? This is first your general fundamental processes. Under fundamental processes you have humification. Humification means formation of humus, and it happens by decaying of organic material like plant materials, animal remains, and it get converted into raw organic matter into humus, right? This is forming up of the upper layer of soil profile, ठीक है? तो ये बेसिकली फंडामेंटल प्रोसेसेस हेल्प अस आउट टू फॉर्म द सॉइल प्रोफाइल ओनली, ठीक है? एलुविएशन क्या होता है? एलुविएशन आप ऐसे भी समझ सकते हो, वॉशिंग आउट। अब ये वॉशिंग आउट मीन्स दैट मोबिलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स like clay, Fe2O3, L2O3, humus, other salt from one point of soil body to another. Alluviation मतलब क्या होता है? वॉशिंग आउट, यही आपको लिखवाया था, वॉशिंग आउट। सो इसमें वॉशिंग आउट क्या होता है? सपोज ये सॉइल प्रोफाइल है, अभी मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल बताई नहीं, तो इस लेयर से सेकेंड लेयर में अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स लीच डाउन हो रहे हैं, सो दैट इज व्हाट एलुविएशन इट इज. It is the process of removal of constituents in suspension or solution by the percolating water from the upper to lower layers. So इसकी वजह से जो होराइजन फॉर्म होता है वो ई होराइजन बोलते हैं, A2 होराइजन भी बोलते हैं, अभी मैं आपको ये बताऊंगा जब हम सॉइल प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है? दिस इज एलुविएशन. अगर यहीं में मैं आई लगा देता हूँ, इलुविएशन के लिए कर देता हूँ, तो इट इज वॉशिंग इन, राइट? सो इलुविएशन इज नथिंग बट वॉशिंग इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? तो इट इज द डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल्स इन द लोअर लेयर. तो वॉशिंग इन, इस वाली लेयर के लिए वॉशिंग आउट हो जाएगा, जिसमें डिपॉजिट हो रहा है उसके लिए वॉशिंग इन हो जाएगा, राइट? So what alluviation is helping? It is helping us to create a profile. Over here you will see this process leads to textural contracts between E and BT horizons. And horizonization is क्या? It is the process of differentiation of soil in different horizon along the depth of the soil body. Understanding means आप fundamental processes समझ क्या रहे हो? जैसे fundamental processes are helping us to form the soil profiles, whereas specific pedogenic processes are not helping us to form the soil profiles, but it is helping for the local conditions. For example, calcification, ये हमारी जोनल कैटेगरी की आ जाती है, यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल फुली डेवलप हो चुका है. तो इसमें क्या होता है? प्रेसिपिटेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्सिफिकेशन, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द कैल्सिक होराइजन. तो आप यहाँ पे देखोगे CO2 के साथ H2O, कार्बोनिक एसिड मिक्सिंग अप विद कैल्शियम, मेकिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, calcium bicarbonate, basically then calcium bicarbonate is giving us calcium carbonate. It is a precipitative form, right? यही decalcification मतलब क्या हुआ? Removal of this calcium carbonate, decalcification. It is nothing but the process of removal of calcium carbonate or calcium ions from the soil by leaching. ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हम आगे समझेंगे, बट अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है that decalcification, calcification are the specific zonal pedogenic processes. Temperature की वजह से you will see calcium carbonate is getting converted to calcium bicarbonate. Another is your podzolization. Podzolization means इसमें लीचिंग होती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट्स की, और इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ऑफ द इसको पोडजोल्स और पोडजोलिक सॉइल भी बोला जाता है गाइस. इनको हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? इट इज द नेगेटिव ऑफ कैल्सिफिकेशन. कैल्सिफिकेशन में क्या हो रहा था? कॉन्सेंट्रेट, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेट कर रहा था लोअर पार्ट में. पोर्जोलाइजेशन में क्या होता है? लीचेस द एंटायर सोलम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स. देखो पोर्जोलाइजेशन में क्या होता है, हमारा जो सरफेस होगा, सरफेस से लीच डाउन कर जाएगा हमारा सिलिका. जब सिलिका लीच डाउन कर जाएगा, सॉरी सरफेस से लीच डाउन करेगा हमारा एल्युमिनियम एंड आयरन. ये अभी बहुत ही शैलो वे में आई एम टीचिंग यू दिस पोर्जोलाइजेशन, लेटराइजेशन, अभी जो हम पढ़ेंगे इसको इन डेप्थ हमने पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ आप देखो, ठीक है? यहाँ पे तो यहाँ से एल्युमिनियम आयरन विल बी लीच डाउन और ऊपर रह जाएगा सिलिका. जब सिलिका ऊपर रह जाएगा तो इट विल गिविंग यू द एश लाइक अपीयरेंस. इस एश लाइक अपीयरेंस को ही हम पोडजोल्स बोलते हैं, पोडजोलिक सॉइल, ठीक है? देखो यहाँ पर भी लिखा है होल सॉइल बिकम्स डिस्टिंक्टिवली एसिडिक. कैसे? क्योंकि सिलिका विल बी रिमेनिंग अपर साइड. कैसे है कैसे नहीं है वो हम समझेंगे, ठीक है?
कौन से क्लाइमेट में काम करता है ये? कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ज्यादा फेवरेबल रहता है। पेरेंट मटेरियल सिलिकेशियस मटेरियल रहेगा। वेजिटेशन इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि एसिड प्रोड्यूसिंग वेजिटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैसे सही कर सकते हैं इसको वो हम बात करेंगे हमारे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के अंदर, अभी नहीं। ठीक है, ओवर हेयर इज योर, देखो देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर लीज डाउन करने वाला है, एल्यूमिनियम वाटर के साथ लीज डाउन करके ये फॉर्म करेगा। So iron and aluminium move about a horizon gives a bleached gray or ashy appearance. The Russian use the term podzols for such soils. ठीक है, तो podzolization is a soil forming process which prevails in cold and humid climate where coniferous and acid forming vegetation dominate. ये बहुत ही अच्छी definition जो आपको ध्यान में रखना। Now you come to the laterization. Laterization is nothing but now silica will be leached down और ऊपर आपके उसमें रह जाएगा आयरन एंड एल्यूमिनियम। जब आयरन और एल्यूमिनियम रह जाता है तो आयरन कौन सा कलर देता है? रेड। तो लेटराइट मींस रेड कलर टाइप आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हमें कहाँ पर मिलता है इंडिया में? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये हम पढ़ेंगे जब हम सॉइल्स ऑफ इंडिया देख रहे होंगे। ठीक है, सो इट इज स्पेसिफिकली पर्टिकुलर सीमेंटेड हॉरिजन इन सर्टेन सॉइल्स व्हेन ड्राइड बिकम वेरी हाइट लाइक अ ब्रिक। Over here you will find that massively impregnated with secucides. Secucoids means iron and aluminum oxides will remain at the upper surface. ऊपर के सरफेस में आपको आयरन और एल्यूमिनियम मिलेगा और सिलिका विल बी लीज डाउन। ये अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है समझने के लिए, सिर्फ अभी ऐसे आप रीड डाउन कर दो, ये आगे वाले लेक्चर्स में और ज्यादा क्लियर होगा गाइस। ठीक है, दिस सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस इज कॉल्ड लेटराइजेशन। तो लेटराइजेशन इज द प्रोसेस जहां पर हम सिलिका रिमूव करते हैं, देख रहे हो, इंस्टेड ऑफ सेस्क्योक्साइड्स। सेस्क्योक्साइड्स कुछ नहीं है, आपका एल्यूमिनियम एंड आयरन है फ्रॉम द अपर लेयर्स एंड देयर बाय लिविंग एल्यूमिनियम एंड आयरन टू कंसंट्रेट इन द सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एजोनल कैटेगरी में क्या क्या आता है? एजोनल कैटेगरी, नॉट एजोनल बट इंट्राजोनल कैटेगरी में आता है ग्लीजाइजेशन। ग्ली मींस यहाँ पर आपको ब्लू ग्रे अपीयरेंस मिलेगा सॉइल का। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इनटू द डेवलपमेंट ऑफ ग्ली। अब ये लोकल एरियाज में आपको मिलता है। ठीक है, ये होता क्यों है? क्योंकि पुअर ड्रेनेज कंडीशन रहती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। वाटर लॉक कंडीशन में यू विल सी दिस टाइप ऑफ सॉइल्स। देखो यहाँ पर सैलिनाइजेशन मींस यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स हो जाता है। अभी नहीं देखेंगे हम क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं, बट सैलिनाइजेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, डीसैलिनाइजेशन मींस हमने रिमूवल किया है जो सॉल्युबल सॉल्ट्स को बाय लीचिंग डाउन। अब यहाँ पर मतलब वाटर ज्यादा ऐड करना पड़ेगा तो डीसैलिनाइजेशन करवा सकते हैं। अभी आई एम जस्ट सेइंग कि ये हमने ग्रेटर डिटेल के अंदर पढ़ना है अंडर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, तो यहाँ पर ज्यादा फोकस ना करें, जस्ट लीव इट डाउन। आपको ये प्रोसेस, आपको फ्लो चार्ट याद होना चाहिए और इस फ्लो चार्ट में हम और भी डिटेल्स ऐड करेंगे, डोंट वरी। सोलोनाइजेशन और एल्कलाइजेशन मींस एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस, इसको भी हमने ग्रेटर डिटेल में पढ़ना है। सोलोडाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ सोडियम आयंस। जहां पर आप सॉल्ट एक्यूमुलेट कर रहे हो सैलिनाइजेशन, सॉल्ट रिमूव कर रहे हो डीसैलिनाइजेशन, सोडियम ऐड कर रहे हो सोलोनाइजेशन, सोडियम रिमूव कर रहे हो सोलोडाइजेशन, दैट इज डी एल्कलाइजेशन। कैसे हो रहा है ये इक्वेशन सब हमने पढ़ना है, लेकिन अंडर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, ये यहाँ का पार्ट नहीं है गाइस। लेकिन ये भी प्रोसेसेस चल रहे हैं इंट्राजोनल कैटेगरी में, नॉट इन द जोनल कैटेगरी, राइट। वन इज पीडोटर्बरेशन इज नथिंग बट द मिक्सिंग अप ऑफ सॉइल्स, राइट। और कौन से टाइप्स ऑफ पीडोटर्बरेशन आप देखते हो? फॉनल पीडोटर्बरेशन विच इज मिक्सिंग ऑफ सॉइल डन बाय एनिमल्स, फ्लोरल बाय प्लांट्स, एर्गलिक बाय मटेरियल्स इन द सोलन बाय चर्निंग प्रोसेस caused by swell shrink clays as observed in deep black cotton soil. So these are your soil forming processes which are divided into, बिना देखे pause the video and write it down, fundamental processes and specific pedogenic processes. Fundamental में you have humification, you have your humification, elevation and horizonization. Specific में zonal you have calcification, decalcification and other than that what do you have? Laterization and what? Where ash like structure, podozolization. Intrazonal में you will see gleization, calcification, decalcification, solonization, solidization, pedotarbidation. ये आप लिखो एक बार। अब इसी में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक टॉपिक होगा प्रॉब्लमेटिक सॉइल, ठीक है, वहां पर हम देखेंगे इसको। सो ओवर हियर इफ वी विल सी द सिलेबस, you will find
दैट हमने प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को कंप्लीट किया है। इसको समझने के लिए हमने बैकग्राउंड भी समझा है, कैसे थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सीइंग सॉइल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। जो भी आज पढ़ा है, जितना भी डाउट आपको आ रहा है, जस्ट हैंग ऑन, ठीक है। आपको एक बार पूरा ये पढ़ोगे, पूरी यूनिट इज इंटरकनेक्टेड गाइस, और ये यूनिट दूसरी यूनिट के साथ इंटरकनेक्टेड। जैसे प्रॉब्लम सॉइल्स और रिक्लेमिनेशन में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, सेलेनाइजेशन, सोलिडाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, ये क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स ही तो है, एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल, तो इसको सही कैसे करेंगे, रिक्लेम कैसे करेंगे, वो हम समझने वाले हैं यहाँ पर। तो दैट्स वाई कुछ प्रोसेसेस आपको यहाँ पर समझ आएगा, सब इंटरकनेक्टेड वे में, लेकिन जो फॉर्मेट आपको मैंने दिया है याद करने को, वो याद रखना है आपने, ठीक है। रेस्ट सॉइल्स ऑफ इंडिया में भी कुछ क्लियर होगा, मिनरल और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट दोबारा हमने पढ़ना है, फिर यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिएंट वगैरह पढ़ेंगे, सॉइल फर्टिलिटी पढ़ेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे, ये सब हमने दोबारा से पढ़ना है गाइस। सो एवरी सब टॉपिक इज इंटरकनेक्टेड टू, सो वी विल डू we will just revise what all we have seen in today's class. So we have started it by understanding the soil science definition. Then we have moved on to understand that okay, there are elements present, because of elements minerals are getting formed. Minerals we have studied in greater detail, and you also have to understand minerals guys, all right. Minerals may we have seen the classification on the basis of origin, on the basis of what origin, we have seen on the basis of chemical composition, on the basis of weathering, on the basis of another thing also we have seen. Out of this SCM, silicate clay material is very important, layer wise, and oxygen components we have seen, oxygen share करके कितना बता, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। After that, minerals will be consolidating into rocks, igneous, sedimentary, metamorphic, इसके examples आपको ध्यान में होने चाहिए। Rocks are getting converted into weathering processes, and weathering processes में you have seen physical, chemical and biological, and giving us a regolith. Then a regolith is having soil forming factors and soil forming processes, which is giving us final soil, right? Now we are getting soil, और सॉइल का कंपोजिशन हमने देख लिया है, दैट इज 45%, 5%, 25%, 25%। आई होप यू आर रिमेंबरिंग दिस। अब जब हमने सॉइल पढ़ लिया तो कुछ डेफिनेशन भी हम देखेंगे। देखो बहुत सारे लोगों ने दिया, विट्नी ने दिया है, हिलगार्ड ने दिया है, बट आप डॉकुचेव की सॉइल की डेफिनेशन याद रखो। सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैविंग अ डेफिनेट जेनेसिस एंड अ डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स ओन। और जॉफी, soil is a natural body of mineral and organic constituent differentiated into horizons, usually unconsolidated, ठीक है। एक ये वाली डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो, जेनी ऑल्सो गेव इट। इन तीनों में से आपको सॉइल की जो डेफिनेशन अच्छी लगे आप वो पकड़ के रखो, ओनली वन डेफिनेशन, ठीक है गाइस। सॉइल की एक डेफिनेशन आपको रखनी है, सॉइल साइंस की एक डेफिनेशन रखनी है, ठीक है। रेस्ट यू कैन रीड आउट फ्रॉम द पीडीएफ, बट नो नीड टू फोकस अपॉन, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम वाले दिन एक ही चीज याद रहेगी जो बार बार पढ़ोगे। इतनी सारी चीजें डेफिनेशन पढ़ोगे नहीं होगा, बट मेरा काम है आपको देना कि इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में, यूनिवर्सिटी मटेरियल्स में ये पढ़ाया जाता है। दैट मीन्स प्रोफेसर्स भी इसको कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, राइट। तो आप एटलीस्ट 2-3 डेफिनेशन ध्यान में रखो, इससे ज्यादा नहीं। कोई नहीं पूछने वाला आपसे ये क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, अब एक बार PYQs को सॉल्व करने की कोशिश करना गाइस, राइट, ठीक है गाइस। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स पूरा आएगा एंड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस पूरा आएगा, तो उसमें आपके पास बहुत कुछ कंटेंट है लिखने को। कुछ चीजें हम इन डेप्थ पढ़ेंगे अबाउट सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में, जो हमने सेलेनाइजेशन बहुत ही अभी डेफिनेशन वाइज पढ़ा है, इसको हमने और इन डेप्थ पढ़ना है। इसको रिक्लेम कैसे करें, इस सॉइल को सही कैसे करें, वो भी हमने देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। दीज लेक्चर्स अगेन आई विल बी सेइंग दैट विल बी इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, सो दैट हम लार्जर मास को कवर कर पाए। बहुत सारे बच्चों की क्वायरीज थी कि आप सर प्लीज हिंदी में पढ़ाएं, तो कंटेंट हमारा सारा इंग्लिश में रहेगा और लेक्चर डिलीवरी हमारी हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ रहेगी, ठीक है। अर्लियर लेक्चर्स हमारे कंप्लीटली, जो प्रीवियस कोर्स था वो कंप्लीटली इन इंग्लिश था, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। रिवाइज दिस लेक्चर होल हार्टेडली, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक which will be in the next class, physical, chemical and biological properties. very very important। ये जो टॉपिक है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए, यूनिट नंबर 5 के लिए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।